Assalamu alaikum. This is Nurul Nawaz, Senior Officer, ICMS Center of Excellence and Certifications Department. On behalf of ICMA Pakistan, I warmly welcome to all of you at today's LabCon. HR and Finance speak two different languages. Traditionally, HR and finance have often been viewed as two separate functions with different perspectives. Recognizing this growing need for alignment, ICMA Pakistan has scheduled this WebCon to create a meaningful platform where finance leaders and HR professionals come together to exchange their perspectives. I would like to invite our panelists for today's session, Mr. Faisal Panwala, FCMA, CGMA, GM Finance and Taxation, Ms. Tayyaba Yamin, CHRO Saudi Park Industrial and Agriculture Investment Company Limited, Ms. Hina Kawal, Head of HR at International College of Excellence, Mr. Murtaza Shirazi, CFO, Army Welfare Trust. We are honored to have such distinguished professionals with us today. Let's begin today's webcam and explore whether HR and finance truly speak two different languages or whether they are strategic partners working together at same organizational wheel. Now, I invite Ms. Samreen Oman Ansari to moderate the session. Her valuable experience and professional insights will greatly contribute to an engaging and powerful discussion today. Over to you, ma'am. Thank you so much, Ms. Nawal. I warmly welcome everyone. Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Thank you so much for joining in today for our session on HR and finance speak two different languages. At first glance, HR and finance seem to operate in entirely different worlds, don't you think? Because HR thinks about and talks about capacity building, people management, talent hunting, and finance talks about stop making these expenses, curtail the cost, and think about adding revenue. So HR focuses on people, culture, and engagement, and finance focuses on numbers and efficiency. But in reality, both functions are actually working towards the same objective, because we all would like to create a sustainable organization where performance create long-term value creation. So this is something that inshallah ta'ala we are going to be talking about. The vision behind this event was to bridge the gap between human capital strategy and financial decision making. Basically, we're here to explore how organizations can move towards more data-driven and value-based HR. And most importantly, to foster alignment between people strategy and financial performance. So we also made a conscious effort to make this panel a very diversified one, wherein we are having people from banking side, we're having people from manufacturing and service industry, and also from academia. So keeping this diversified panel in mind, we actually wanted to talk about areas that are really important and should be, more of a positive fight between both of these departments who are mostly on conflict. So doing that, we're going to be talking about four important areas. The first one, the first topic of discussion would be HR as a cost versus HR as an investment. The second topic that we'll be covering would be workforce planning versus budget planning. The third is financial lens on human capital investment. And the fourth is linking HR matrix with financial performance. So these are the important areas. Let me just brief you how are we going to keep this program of 2 hours. It's going to be a very interactive and conversational format. We haven't kept any formal presentations for this webcon, and I will be your moderator for the session.
I'll be coming up with questions for the panelists, and we are going to hear their perspectives as to, what HR thinks about it, or maybe what finance professionals think about it. And then we are going to have a healthy debate. So it's going to be an insightful differences that lead to better understanding. So this is the basic idea. So then obviously we're going to take your questions also. So in case you have certain questions, you can comment in our comment section, and at later stage, we're going to be asking these questions from our respected and distinguished panelists. And yes, a very important element that we've added for the very first time is a rapid fire round for our HR and finance professionals as well. So that is something interesting as I'm doing it for the very first time, and let's see how it turns out. This is the basic idea. Right now I'd like to say Assalamu alaikum to my panelists. अगर आप लोग अपने cameras खोल लें, so we are going to be looking into each other and talking. जी वालेकुम अस्सलाम समरीन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। We have wonderful. Thank you so very much for turning on your cameras, and it's a privilege for me to have you here. I'd like to first, throw a question on, there are a number of topics. So, जो पहला topic हम ले रहे हैं वो है HR as a cost versus HR as an investment. ठीक है. So the first question would be from one of the HRs here. So either Miss Tayyaba is going to answer or Miss Hina going to answer. So the question is, from your perspective, why does HR still struggle to be seen as a value driver rather than a cost center? Should I answer for that? Yeah, please. Okay. You're on mute, Miss Hina. Can you please unmute your mic? Okay. Can you hear me now? Yeah, audible. So first of all, thank you so much for inviting Samreen. It's a pleasure to be here and meeting with all the great people sitting already here. So as you have asked why HR still struggles, because HR is, I think, the most undervalued process or department of any organization. We have been seeing like HR does nothing, sits there and just call people for hiring and firing. So this is the whole function that has been understood for the HR for the longest time, and it is most misunderstood part, which is the main reason why we are still struggling with anything and everything, because we are not able to put our point of view in front of even the senior management or to the people or to our colleagues who are working around us. So finance and HR have, they have been carrying on this tussle, I think, till the till the two departments have been differentiated. So this is the finance department and this is the HR department. So we are interconnected, yet we are not being on the same page. So which is why HR is still struggling to push their point in front of the finance professionals. We are struggling to have people managed departments. We are still struggling to put. We are also struggling to get the candidates with lower packages, which do not hurt our financial problems. Which do not hurt the organizations. But on the other hand, we have been taken like we are putting the pressure on the organization to get the few people without seeing the inflation, which has the direction the inflation has been taking. The finance is like, they have closed their eyes for that side, and they are blaming HRs for, hey, you are bringing so much pressure, you are bringing expensive people without looking at the price of the fuel and the struggle people have been making. We have seen people, we have seen the salary brackets coming to us, like we need people with let's say 5 to 7 years of experience. This is the minimum I'm quoting. I have seen the demands of hiring people with 10 to 15 years of experience, and what we are giving them 100 or 150K. Are we still like, is this insane? Like, you cannot ask a person who has spent their life for the profession and you are telling them, okay, you come up to us, and they are hardly fulfilling their fuel prices. So this is why
Yeah. We have a very, big grievance against finance here. The first speaker just started, she just bombed out of her heart. And I believe that's going to be really interesting to us going forward. So moving on to Miss Tayyaba. Miss Tayyaba, can you please elaborate as to, where she stopped? Because I had to stop her. Actually, Anyway. Pehle to thank you so much for this opportunity, and this is an important discussion. I agree with Hina, but I have 24 years of HR experience. It's been 24 years that Mashallah. I'm looking after HR. And throughout my career, I have been part of financial institutions, commercial bank, microfinance bank, or development finance institutions. So, when I started off my career, I would agree, yes, at that point in time, HR was seen as a cost, HR was like a process driven department. We were always firefighting, as she said. It was perceived that the job is to hire and fire people, perhaps, and you have to train the people, and all you do is to compensate the people. But now things have evolved. I think HR, particularly in the banking sector, has evolved, and now it's actually seen as a business partner. Why? Because now I feel that HR is now talking in the way business talks. पहले ये था कि whenever we used to get a resource requirement, we were like that, we are not going to hire a resource. We have to advertise this position. We'll not give you a resource in 10 days time. Sorry. We have a thorough process. We'll advertise. We'll give, 10 days time to the applicants. And then we have to complete this document and that document and panel and this and that. But now I think HR has evolved. They understand the business requirement in a better way. They when you talk business, in front of business, and you realize that yes, this is something which is a requirement for the growth in the business, then you are seen as a partner. But if you are process driven, if you are like we used to have this mindset perhaps 10 years back. But now I think things have changed. HR is now being valued in terms of talent retention, the culture, the people side of HR, how they translate into profitability. These things are now tabled. Generally, the top team understands it, and now HR is perceived in a different way. And with regards to your question that is HR a cost? HR in terms of people, they are cost or they are asset? I think they are both. In terms of P&L, it's a cost, and HR is the biggest cost on your profit and loss statement. There's no doubt about it. But it's in the short term. But going forward in the long term, if you hire a right person, that person is going to be a biggest driver of revenue. So this is how things run. I think finance ka perspective is also right, but HR's perspective is equally important. Very good, ma'am. Thank you so much for your I take. Now, I would yes, like to please. add one thing here. Yeah. As she said that HR seems as a cost, I think HR itself has been taken as a cost for the organization because they think they do nothing. Why do we have Yeah, why totally. do we have so much expensive HR sitting in the office? So yeah. Yeah, she's also right because there are different perspectives in different organizations. If you're a manufacturing concern, you think the other way. If you're in a banking sector, it's evolved in Pakistan already, so you think other way around. And maybe in academia, it's still a problem. It's still considered as a cost center. So we have perspectives here, and I really value all of your perspectives. Now we're going to move towards finance. From Murtaza Saab and Faisal Saab, whoever would like to answer. When you evaluate HR budgets, what makes you classify something as a cost versus something as a true investment? Assalamualaikum Sameen. वालेकुम मैं सलाम। स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट मैं फैसल को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें सपोर्ट करे, लेकिन आपने डिफेंड करने की अच्छा वाली साइड टोटल खवातीन बिठा दी, हम क्या जस्टिफाई कर पाएंगे? इन बहरहाल अपना हिना ने बड़ी अच्छी बातें की, तैयबा ने भी अच्छे पॉइंट्स रेज किए। लेकिन अगर आप देखें तो कोई भी सेटअप हो ना, चाहे हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, विदाउट एचआर तो कोई चीज भी, हमारे पास तो कोई इतनी ऑटोमेशन नहीं है। तो एचआर तो इन ऑलवेज होगी, तो आप कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे और कुछ कमाएंगे, लेकिन उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। हिना ने बड़ी अच्छी बात की, मतलब
she understand यार आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आती हैं और आप उसको एनालाइज करती हैं कि आप टीम बिल्ड कैसे। एचआर की कॉस्ट अगर आपको नंबर्स के मैट्रिक्स समझ में आ रहे थे और फाइनेंस और एचआर अगर आप एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं ना, तो ये ज्यादा मीनिंगफुल बनता है। अगर आप उन्हें समझा पाए कि लाइक एचआर की कॉस्ट टू रिमेन अराउंड 7 to 12%, हमारा सीएम इतना है तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट एचआर की चाहिए, ओवरऑल प्रोपोर्शन आप इन कर रहे हैं उसमें सपोर्ट फंक्शन में अच्छा पीएनएल देखें ना, तो पीएनएल में मेजर जो सेक्शन होता है आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, जीपी निकलता है, एसजी&ए होता है जो कि एंड वन होता है। आप जिधर भी जाके देखें जहां पे चैलेंज आ रहा होता है वो आपके जो निचला है जो नीचे नीचे है ना वहां पे चैलेंज आ रहा होता है कि वहां एक्सेसिव स्टाफ हो। वो प्रोपोर्शनेट मैनेज करना कि आपने कोर टीम कितनी रखनी है और नीचे सपोर्ट फंक्शन कितना रखना है। आपने सपोर्ट फंक्शन लीन रखना होता है और कोर टीम जो होती है जो एग्जीक्यूशन, तो इसमें थोड़ा बहुत चैलेंज होता है। और अब मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा तो बहुत अच्छा है। ज्यादातर मैंने फैब्रिक से काम किया, ये चीजें शायद आप हम लोग सर आपकी आवाज थोड़ी सी बीच बीच में ग्लिच हो रही है। थोड़ा सा अगर आप देख लें कि विदाउट माइक्रोफोन अगर। लेट मी ट्राई। जी जी। जी अब आवाज बेहतर है। यस सर इट इज। ओके ग्रेट। अच्छा तो आई वाज सेइंग कि मेरा तो एक्सपीरियंस एचआर के साथ बहुत बेहतर है। हम लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में थे आज से कोई 2 साल पहले। आई वाज हेडिंग मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और एचएमसी का हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। तो अराउंड 1500 की लेबर थी और बाकी जो ऑफिसर स्टाफ था वो भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। तो मैनेज करना एचआर के लिए भी इजी नहीं था, लेकिन उसको आइडियली उसको बैलेंस करके चलाना, उसको प्रोफेशनली मैनेज करना, एंड देन फिर केपीआईज का फंक्शन आप केपीआई स्मार्टली उनके रखें, व्हाट टू अचीव एंड हाउ टू अचीव। अगर आप केपीआई रखते हैं और केपीआई की मॉनिटरिंग हो रही होती है और उसकी बेस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कहेगा कि एचआर की कॉस्ट एक्सेसिव है। एचआर की कॉस्ट सिर्फ एक्सेसिव तब होती है जब आप जो सपोर्ट फंक्शन है उसे आप हैवी कर लेते हैं, या राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं आता है, या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव सैलरीज पे ले आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि एचआर और फाइनेंस का कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आता है अगर आपस में मिलके काम करें। जहां डिस्कनेक्ट होगा तो वहां ये चैलेंज जरूर आता है। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सर फॉर योर पर्सपेक्टिव। जी फैसल साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू यू क्लासिफाई इट एज अ कॉस्ट और एन इन्वेस्टमेंट? Okay, thank you for having me. From finance perspective, I believe HR and finance don't speak, different languages. We focus on the same equation, but we have different sides of it. The equation is the same. लेकिन finance focus करता है numbers और outcomes पे, while HR focuses on drivers, outcomes, motivation, culture, ठीक है, capacity building. ये narrative HR का होता है। तो जैसे तैयबा ने कहा कि आई 100% बैक के जब आप पर्सपेक्टिव सामने ऐसा रखेंगे ना कि यू आर बिल्डिंग पीपल, कल्चर, कैपेसिटी, और जैसे हिना ने कहा, तो हिना के लिए मैं ये कहूँगा कि देखें, जिस पर्सपेक्टिव से आप अपना वो रख रहे हैं ना सामने मैनेजमेंट के, वो उसी तरह से परसीव करेगी। अगर इफ यू आर पुटिंग दिस पर्सपेक्टिव टू टॉप मैनेजमेंट के एचआर की कॉस्ट है, तो टॉप मैनेजमेंट हमेशा ही आपको बोलेगी कि मिनिमाइज इट। बट व्हेन एचआर इज सीन एज अ इन्वेस्टमेंट, अ लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, कल्चर पे इन्वेस्टमेंट, द ड्राइवर्स, वो एचआर को एक्सप्लेन करने हैं टू द मैनेजमेंट। फाइनेंस विल जस्ट आस्क देम टू, जैसे उन्होंने हमारे जो दूसरे हमारे जो पैनलिस्ट हैं मुर्तजा साहब ने कहा कि आरओआईज पे डिस्कस करता है फाइनेंस। फाइनेंस को नंबर्स चाहिए।
आपने अगर एक कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई फॉर्मूला मैनेजमेंट से अप्रूव कराया है, जस्ट डिस्कस द आरओआईज विद अस। आपने एनुअल बजट प्लान बनाया है, डिस्कस विद अस कि आपका उस पर्सपेक्टिव या उस एक्सपेंस का नेचर जो है, ठीक है मेरे लिए वो पीएनएल में एक्सपेंस है, आई एग्री, बट आपने मैनेजमेंट को क्या पिच किया है, क्या पर्सपेक्टिव दिया है, उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वी कैन हैव अ आरओआई। वी आर नॉट सम क्लोज डोर। आज के जमाने में आप क्लोज डोर हो भी नहीं सकता, ठीक है। जैसे तैयबा ने कहा, आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर आप देखें जो पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म विजन वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एचआर को फ्यूचर कैश फ्लो की इन्वेस्टमेंट्स ही समझती हैं। क्योंकि जैसे अगर आपने रॉन्ग हायरिंग की तो आपके पास हायर टर्नओवर भी है, हायरिंग इनएफिशिएंसी। इसी तरह जैसे अगर सपोर्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको मैनेजमेंट यही कहेगी कि प्लीज़ रिड्यूस दिस कॉस्ट। क्योंकि एंड में देखिए बॉटम लाइन में नंबर्स मैटर्स, ठीक है। मैनेजमेंट को कंपनी चलाने के लिए बॉटम लाइन के नंबर्स पॉजिटिव चाहिए। इट्स एचआर's ड्यूटी टू सेल दैट पर्सपेक्टिव। जो हिना कह रही थी ना, यू हैव टू सेल द पर्सपेक्टिव। If you need finance, finance is here to build the ROIs. We can discuss to minimize those costs. आप हमसे ये भी ROI करवा सकते हो कि भाई हाई टर्नओवर की क्या कॉस्ट हो सकती है। आपके जो हाई परफॉर्मर्स हैं उनकी रिटेंशन, या जिसको वो कहते हैं आजकल हम जो एचआर की ज़बान में कहते हैं, आप जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो लॉस को रोकना, वो भी एक कॉस्ट है। जैसे हिना ने कहा कि इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है, तो आपके टॉप परफॉर्मर्स तो नहीं रुकेंगे, बट एचआर हैज टू सेल कि व्हाई दे आर डिमांडिंग हाई सैलरीज। अगर तो वो नहीं रुकते तो रिपरकशंस क्या है फॉर द बिजनेस। आपकी हायरिंग होगी, रॉन्ग बंदा हायर हो सकता है, आपका जो है पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है इंडस्ट्री का, कंपनी का। तो दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज ऑन दिस इशू। सर आपने एक जो है वो पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है, टॉकिंग अबाउट केपीआई एंड मैट्रिक्स। तो अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि सी ऑन द डैशबोर्ड ऑफ एचआर वी हैव मल्टीपल लाइक मैट्रिक्स अवेलेबल, सही है। हम उसमें रिटर्न ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग भी निकाल रहे होते हैं, रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी निकाल रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पर एम्प्लॉय भी निकाल रहे होते हैं, लाइक द नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। जिसमें से फाइनेंस का फेवरेट है कॉस्ट, आरओआई एंड एफिशिएंसी उनके डैशबोर्ड पे, और एचआर का है एंगेजमेंट, रिटेंशन एंड कैपेबिलिटी यानी कैपेसिटी बिल्डिंग जो आपने कहा, ठीक है। अब इसमें से ऐसे और 10 मजीद ऐसे कुछ मैट्रिक्स हैं जिसपे आप दोनों अग्री भी नहीं करते, वो आपके लिए बहुत इंडस्ट्री मुश्किल है डिपेंड डाइजेस्ट भी करना। करता है कि सर आई डोंट नो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग फाइनेंस के साथ मैं भी काम करती हूँ, एंड आई हैव सीन पीपल इन फाइनेंस नॉट इजीली डाइजेस्टिंग नंबर ऑफ आरओआईज, आई मीन नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 3-4 है जो आप लोग एक दूसरे की सुन लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको एचआर के डैशबोर्ड्स में कौन से ऐसे ऐसे मैट्रिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं लगते, आपको लगता है कि इसके ऊपर ये तो फजूल है, इसके ऊपर तो फिर तो कॉस्ट आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन का पैसा जाया हो रहा है। सो विच मैट्रिक्स डू यू थिंक इज ऑन द डैशबोर्ड ऑफ एचआर विच यू डू नॉट लाइक इन फाइनेंस? टैलेंट नीड्स, टैलेंट टैलेंट की नीड्स, रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर टैलेंट की टैलेंट नीड है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आज नहीं टैलेंट डिपार्टमेंट नहीं, अगर जो जिन नहीं टैलेंट डिपार्टमेंट्स की में रिक्वायरमेंट, टैलेंट की रिक्वायरमेंट, यस, जो कैपेसिटी ठीक है। टैलेंट बिल्डिंग नीड की अगर एनालिसिस आपको गैप्स समझ हैं, नहीं आता, यस, कैपेसिटी बिल्डिंग गैप्स हैं या कैपेबिलिटी गैप्स हैं, तो गैप्स तो हैं। उसको जो है ना, गैप्स तो होते हैं, ठीक है। अब गैप्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कुछ नंबर्स तो गेज करेंगे ना। अच्छा, बाद में मसला ये होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बजट्स तो एलोकेट हो जाते हैं। जो प्रॉब्लम आती है ना, वो ड्यूरिंग द पीरियड और एट द एंड ऑफ द ईयर, उन जो आरओआईज या जो केपीआईज हमने डिफाइन किए थे, फाइनेंस कहता है उसको नंबर्स में ज़रा मुझे गेज करके बताएं। जेनेरिक बात ना करें कि इतने लोग गए, इतने लोग हायर हो गए। मुझे ये बताएं कि आपने कितने लोग रोके जिसकी वजह से रीहायरिंग कॉस्ट बची, हम्म जिसकी वजह से आपके टॉप परफॉर्मेंस रुके, जिसकी वजह हम्म से आपकी कंपनी की जो एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर कोई वो थी तो वो पॉजिटिवली वो कन्वर्ट होगी पॉजिटिव में, ठीक है। इस तरह के गेजेस को आप नंबर्स नहीं दे सकते, बट यू कैन डिस्कस दिस, यू कैन हाईलाइट दिस इन एनुअल बजट मीटिंग्स, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में। एचआर के पास पूरा फोरम होता है, एचआर अपने जो भी आरओआईज डिस्कस हुए थे ड्यूरिंग द या बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, उसको एंड में आके जस्टिफाई करे। आई डोंट थिंक सो। देखिए, बिल्कुल ठीक जैसी है। बात हुई ना कि आज की ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना,
ह्यूमन कैपिटल पे बात करती है, आई कैन एक्सेप्ट के भाई 30 साल पहले बहुत लेबरस इंडस्ट्रीज होती थी पाकिस्तान में भी। आज ठीक है, आज हम उस कैपेसिटी से नहीं आगे बढ़ रहे कि एआई ड्रिवन या ऑटोमेशन है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आज भी हमें बिल्कुल ठीक। सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, हमें टॉप परफॉर्मर्स की जरूरत है। तो जब नंबर्स की बात आए ईयर एंड पे, तो उन्हीं आरओआईज का रिटर्न या सेविंग्स या उस फॉर्म में दिखाएं और अगले साल के लिए उसी को गेज करके बजट्स लें, गेज करके केपीआईज बनवाएं। तो आई बिलीव टॉप वेरी ट्रू। मैनेजमेंट भी मानेगी और फाइनेंस भी, आई होप कि उस तरह से आपको काउंटर नहीं कर सकेगा अगर आप बगैर अच्छा, नंबर्स के, बगैर प्लानिंग के, बगैर केपीआई की रिटर्न कैलकुलेट किए हुए, क्योंकि देखिए फाइनेंस नंबर्स पे बात करते हैं। ऐसा ही है। इवन नंबर्स भी ना हो, आप अपना पर्सपेक्टिव उस सेविंग्स या आपने जो कल्चर डेवलप किया या पॉजिटिव एटीट्यूड किया, आज तो देखिए ग्लास डोर है, आपके बहुत सारे लिंक्डइन के फॉरम्स हैं जहाँ पे आपके पास पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत मिलते हैं। गूगल रिव्यू ही दिखा दें, मिल जाएगा कि किस कंपनी के ऊपर क्या रिव्यूज और कमेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक तो है। एचआर के पास तो बहुत ओपन फोरम है, अब आज के अभी जमाने एचआर में तो इतना बहुत खामोश क्यों ओपन। बैठा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में फाइनेंस ने इतना सारा बोल दिया, दो दो सवालों पे हमारे एचआर नहीं, खामोश बैठा है। समरीन, मैं थोड़ा सा यस एचआर यस। को जी और जी सर, सपोर्ट ऐड करें करना प्लीज। चाहता हूँ। हाँ जी फरमाएं। बेसिकली एचआर के बगैर ना, मैं तो सीरियसली एचआर के बगैर काम करना बहुत मुश्किल है। आप अगर केपीआईज का सिस्टम इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना, और आप चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़े, नॉर्मली एचआर को ना साइड लाइन किया होता है, ऑपरेशंस में वो लोग नहीं होते। एचआर का फंक्शन ट्रेनिंग या हायरिंग और इस टाइप के, या कोई इवेंट, कोई डे सेलिब्रेट करना, तो एचआर सामने आ जाती है। वेयर एज एक्चुअली एचआर का रोल अब वो नहीं है। एचआर प्रॉपरली बिजनेस पार्टनरिंग का रोल है। और आई एक्टिवली इंगेज देम एट मैक्सिमम लेवल। जहां तक मैं उनको, मतलब इवन मैं प्रोक्योरमेंट की मीटिंग्स में मैं उनको बिठाता था कि भाई बैठो, तुम लोग देखो कि प्रोक्योरमेंट हो रही है, प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में डिले, अगर सपोज मैं जो प्रोक्योरमेंट है उसमें टेक्निकल प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, और टेक्निकल टीम लेके महीना महीना फाइल लेके बैठी रहती है, तो जो काम होना है, जो प्रोडक्टिविटी होनी है, जो प्लान आपके टारगेट्स हैं, वो तो सब लसन लग जाते थे कि सब चीजें लेट हो गई, और तब तक पता चलता था बिड भी वो हो गई, बिड की वैलिडेशन ही खत्म हो गई। इसी तरह सबसे जो आपका क्रूशियल फंक्शन होता है ना, वो होता है सेल्स का। और सेल्स की टीम कभी भी लाइक उनकी पाइपलाइंस खत्म नहीं होती और टारगेट्स अचीव नहीं होते। तो मैं एक्टिवली सेल्स की जो केडेंस कॉल होती थी उसमें जो हम टॉप टीम बैठते थे, उसमें मैं एचआर को जरूर बैठाता था। हमने पूरी टीम के जो टारगेट्स थे वो डिवाइड करके, अकाउंट लेवल मैनेजर जो उनके होते थे उस लेवल तक हमने उसको डिवाइड किया, और हर एक की जब केडेंस कॉल हो रही होती थी तो एचआर नोट्स ले रही होती थी। जब उसने शुरू में केपीआई सेट कर दिए उस बाइशरी लेवल पे, जो बजट हमने इनिशियली प्लान किया, और जैसे जैसे वो क्वार्टरली उसके रिजल्ट्स आ रहे होते थे, तो एचआर हवा में तो परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं कर सकती जब तक वो हर हर प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो एचआर, मेरे हिसाब से तो एचआर नीदर एचआर कॉस्ट नीदर एचआर टीम, वो कभी भी बर्डन नहीं है, इट इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट, लेकिन यू नीड टू कैपिटलाइज इट स्मार्टली। तो अब मेरा मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एचआर का। फैसल साहब मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे एचआर से, तो ओवर टू यू फैसल और एचआर अच्छा टीम। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। आई टोटली एग्री विद फैसल साहब कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस प्लान एंड वर्कफोर्स प्लानिंग मीटिंग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना केस जो है ना, वो इट हैज टू बी बैक्ड बाय नंबर एंड द वैल्यू दैट यू हैव क्रिएटेड। आई टोटली एग्री। क्योंकि अगर आपका एट्रिशन रेट बढ़ रहा है, इट कम्स टू एचआर शुड जस्टिफाई एंड शुड गिव अ रैशनल कि एट्रिशन रेट बढ़ा क्यों। उसके लिए हम ये चार काम कर रहे हैं। अगर आप अपना बिजनेस केस डेवलप करेंगे विद अ सॉलिड रैशनल, आई एम प्रिटी श्योर, देखें, इफ योर लीडरशिप फेल्स, योर एट्रिशन इंक्रीज, इफ योर एंगेजमेंट फेल्स, you lose good people, और आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। if you have aggrieved employees in the organization, they'll work slow, absences and couple of things which entail a lot of cost। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसके ऊपर ये स्टाफ टर्नओवर और ये बर्नआउट्स और ये एग्रीव्ड और डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉइज ये शो नहीं होते।
लेकिन जो बॉटम लाइन पे उसका इम्पैक्ट है वो बिल्कुल HR शो कर सकते हैं। आई टोटली एग्री कि बजट्स आपको तब नहीं मिलते जब आप अपना बिजनेस केस प्रॉपरली पुट अप नहीं कर सकते। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट करते हैं ना, वो डिपार्टमेंट सपोर्ट करते हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि ज्यादा स्टाफिंग बिजनेस साइड पे होती है। बिजनेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होता है, क्योंकि मेनी टाइम्स आई हैव सीन CFOs इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन भी जो फाइट करते थे कि जी आप अपना केस लोडिंग बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास सेल्स का स्टाफ बहुत होता है बैंकिंग सेक्टर में, तो जी केस लोडिंग बढ़ाएं, जी रेवेन्यू बढ़ाएं, एक बंदा जो है उस 500 क्लाइंट्स लेकर आए। सो हेयर कम्स द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट हेड एंड HR, कि जहां पे वर्क प्रेशर्स और उनके इम्प्लीकेशंस क्या है, मार्केट के स्टैंडर्ड्स क्या है, ग्लोबल बेंचमार्क क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स क्या है, आपके पास मार्केट इंटेलिजेंस, आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड ऑब्वियसली द इम्पैक्ट विच विल हैव, जो आपके डिसीजंस करेंगे वो होनी चाहिए, देन यू गेट द बजट्स। Very well said, Okay. miss. Yes, Miss कई Hina. बार सॉरी समरी, मैं पर्टिकुलर इनको आंसर कर दूं। कई बार जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं ना, तो बजटिंग में सारी चीजें देखने के बाद आप टारगेट सेट करते हैं, और वंस आपने टारगेट सेट कर दिए तो फिर हमारे पास बेंचमार्क वही होता है। और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि HR को अगर हर प्रोसेस में आप साथ रखेंगे, जिस टाइम आप टारगेट सेट कर रहे होते हैं, जो टारगेट रियलिस्टिकली होने चाहिए, मतलब भाई एक अकाउंट मैनेजर या उसका जो सेल्स का डायरेक्टर है, वो जो टारगेट्स एक्सेप्ट करे उसको ओन करे, और वो अपनी टीम को अकॉर्डिंगली उसको सेग्रीगेट करके डेलीगेट भी करे। अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे तो फिर देर इज अ प्रॉब्लम। एक तो है फोर्स मेजोर, कोई इकोनॉमिक कंडीशन है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर सेल्स टीम इज रिस्पॉन्सिबल। फिर आपके अप्रेजल्स और ये सारी चीजों में वो चीजें ट्रांसलेट हो रही होती हैं, और इसके ओवर एंड अबव सेल्स टीम का एक थोड़ा सा चैलेंज और भी होता है कि वो सेल्स क्लोज करती हैं, मार्जिन्स गिरा देती हैं, कम मार्जिन पे कमिट, तो ये सारी चीजों को साथ लेके बड़ा क्लोजली चलना होता है। और इसमें HR, अब वो कन्वेंशनल HR नहीं रहती फिर, तो HR को भी थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ता है, नंबर क्रंचिंग और ये चीजें समझनी पड़ती हैं, उसको एनालाइज करना पड़ता है साथ साथ फाइनेंस के। तो इंडिपेंडेंटली नहीं होता, मतलब वो जो आप बात कह रही है ना कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उस स्किल, लेकिन स्किल को कहीं बेंचमार्क से भी देखना होता है कि इनिशियली दे हैड एक्सेप्टेड एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं मुर्तजा साहब को बोलूंगा, So आई I हैड अ want वेरी to, जस्ट वांट टू ऐड टू मुर्तजा साहब कि ये भी बिजनेस एंड HR का ही जैसे आपने कहा ना, सेल्स टीम आती है, सेल्स टीम्स ईयर एंड पे अगर नंबर्स अचीव नहीं कर पाती, तो सबसे पहले तो ये भी गेज करें कि बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स तो नहीं दिए हुए, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हैं या नहीं। इट्स नॉट जस्ट देन HR's कॉल कि यार गलत बंदा हायर करवा दिया। तो वी हैव टू, बिजनेस हैज टू बी वेरी रियलिस्टिक। फिर ट्रेनिंग है, फिर उसको एक सपोर्ट भी देनी है, वो भी एक जॉब छोड़ के या एक अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके पास आया है, यू हैव टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी, द टाइम, और एक इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है उसको, कल्चर और डेवलपमेंट। अगर मैं पहले साल ही अगर HR पे ये वो करवा दूं कि भाई नंबर्स तो आए ही नहीं, बंदे आ गए, अब मेरी सेल्स रेवेन्यू आया नहीं, और मैं नीचे अपने बॉटम पे जो है ओवरहेड का एक फैट लेके चल रहा हूँ। सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। और बात आपकी बिल्कुल सही है कि बिजनेस के साथ जितना HR इंटीग्रेट करेगा, हैंड्स एंड ग्लव वाली बात है, तो ही बिजनेस जो है ना सक्सीड करेगा। दैट्स इट। okay. So I फैसल want to add one फैसल आई thing वुड here. सेकंड, सॉरी है ना, मैं सिर्फ फैसल को वो सेकंड कर लूं। एग्जैक्टली सेम सिनेरियो हमारे पास हुआ। हमारे सेल्स के डायरेक्टर, ही वाज वेरी गुड इन हिज डोमेन, और समहाउ ही मूव्ड ऑन, लेकिन जो दूसरा हायर किया HR ने, समहाउ वो डोमेन का नहीं था। अब टारगेट्स जो थे रियलिस्टिक थे, रियलिस्टिक पिछला डायरेक्टर उतना परफॉर्म कर रहा था, उससे नॉर्मल इंक्रीमेंटल इंक्रीज करके उसको टारगेट दे दिया, बट समहाउ वो डोमेन का नहीं था, वो नहीं परफॉर्म कर सका। सॉरी हिना, आप बात कर रही थी, मैं दरमियान में वो कर दी। No issue, no problem, sir. See, I might have a different perspective from all of you. I agree to whatever you have said, but whatever there is a hiring need, who gives us the need? It's the department head who comes to us and tell us that I want another person in my department because I'm not performing well, right? Let's say you all are talking about sales, so I'll talk about the sales department. HR is just responsible to recruit a person for them. It is the team lead's call to hire whatever he wants to add in their team.
I don't know why HR is held responsible for hiring a bad person or not relevant person in the department when the call is from the team lead अच्छा, who Hina, has can I, decided. No, sorry, no, can I please let interrupt? me तो complete. अच्छा, Let me करें. complete, sir. Let me complete, please. Why HR is held responsible for hiring a wrong person? Secondly, the target is also set by the team lead, not by the HR. HR is only informed about this target has been given because they required a person, let's say, for 3 or 4 years of experience, and this much target has been given to them. And we are not setting the KPIs for the teams. It's the managers who are setting the KPIs for their teams. They are responsible for setting that they want this and this outcome for so and so candidate department person from their department. We are not. We are just there to set our quantitative and qualitative KPIs for them, that even if both are being addressed or not while setting their KPIs. Third thing is, when there is no outcome, when the person is not performing, if you have you all have worked with the sales team, I don't know, nobody has raised this issue that sales team always point fingers towards the marketing team that, hey, the marketing is not right, that's why we're not getting the numbers. So what will HR do in that? HR is not going to point finger to anybody and tell them that, hey, your sales is not complete because marketing is not working. So HR will run after marketing and tell them why your marketing is not working. And then there is a thing come when team leads tell us that team leads go to the senior management and tell them that HR is interfering in our department, HR is poking us, HR is nudging everyone. So this is where my conflict comes when finance team tell us that you are hiring 10 people in sales department and yet we are not getting anything. So we need to be, we need to have a realistic approach in knowing that we are hiring a person on a demand. We are not getting people from from our wish and will, right? अच्छा, can I respond on this, Hina? Yes, Done? please. Yeah, sure, sir. Yes. अच्छा, देखिए, जब आपने पहले कहा ना, तो मैं आपको यहीं पे निगेट कर देता हूँ. आपका पॉइंट वहीं पे खराब हो जाता है. जब डिपार्टमेंट आपको अगर डिमांड रेस कर रहा है, तो यू हैव ऑल द राइट टू आस्क द क्वेश्चन Yes. व्हाई. Yes. अगर आज आपकी टीम में लोग Sir, हैं we और do. we are not Sir, we performing, do. so No, then we you do have ask the the question. pure. Never, sales department never listens to you. Whatever that they tell you hundreds and hundreds of reasons that we need this person, and then they get the approval from the senior management that we do go to the senior man. Look, HR is फैसल not the मैं ultimate रिस्पॉन्ड authority. है ना. Yes, जी, sure, sir. फैसल मैं Sure. ओके. मैं तो ये कह अच्छा, रहा हूँ कि इन्हें देखिए, एचआर के केपीआई साथ. अगर एक मिनट, अगर जी केपीआई जी आपको प्लीज. डिपार्टमेंट दे रहा है, केपीआई जब देता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, तो एचआर हैज ऑल द राइट टू आस्क. ठीक है, आप भी तो उसमें है ना. आप एड कौन पोस्ट करता है, इनिशियल इंटरव्यूज कौन क्लियर करता है, मुझे बताएं. We do, आप ही sir. करते हैं ना. हाँ, मैं Of वहां course पे we आपका do. साथ दूंगा कि जीएमएच एचआर को फोर्स किया गया है कि हायर दिस पर्सन विद इमीडिएट इफेक्ट. ठीक है, और मैनेजमेंट भी ये कॉल दे रही है, तो आई बाय योर आर्ग्यूमेंट. लेकिन आपके पास रैशनल भी है. अगर आप अपना रैशनल, अपने लॉजिक्स, अपना सारा फ्रेमवर्क या वर्क जो करके गए हैं, तो इट डजंट से कि एचआर का फॉल्ट है यहाँ पे. देन दैट्स द हायरिंग मैनेजर्स फॉल्ट. ठीक है, This is what I'm saying. वहाँ एचआर को कोई भी ब्लेम नहीं करता कि एचआर ने गलत बंदा हायर किया. No, sir. एचआर You know द why इनिशियल HR is get blamed? You know why HR is get blamed? Because just Murtaza Saab has mentioned that they hired a wrong person who did not have a background, right? And then when the person does not stay, HR is responsible for not having the retention in the ठीक है, organization. अगर आपने अपनी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स में ये बता दिया था कि दिस पर्सन डजंट हैज द कैपेसिटी या एक्सपीरियंस नहीं है उस केपीआई, उस प्रोडक्ट के उस पे, देन इट्स देयर डिसीजन. आप वहाँ पे बैक ऑफ हो सकते हो कि भाई एचआर ने इनिशियल प्रिलिमिनरी, जब हमने लिस्ट हायर की थी, उसमें हमने आपको बता दिया था या हमने आपको ये क्वेश्चन रेस कर दिया था. Sir Faisal, you have been from finance department. You don't know the grievances as a HR we face, right? So we are not Spot heard on. when we Hina are, is spot on.
Yes, हिना we are हिना never heard when we tell them that हिना this is not the right person. अच्छा, इसमें हिना मैं मेरे ख्याल डेफिनेटली में ऐड कर दूं मैंने ना। सबसे ज्यादा एचआर के साथ क्लोजली काम किया है. आई डू रिप्रेजेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट आई ऑलवेज टेक अलोंग द एचआर डिपार्टमेंट. देखिए, बेसिकली जो मैंने एग्जांपल कोट की थी ना, आर ऑर्गेनाइजेशन वाज अ ह्यूज मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशन, और डायरेक्टर सेल्स हायर कर लिया उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो जिसको सोल्यूशन ही नहीं समझ में आएगा तो वो बेच क्या पाएगा. तो दे सही बात है. सम टाइम हो जाता है ऐसा, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सम टाइम हो जाता है. और इट वाज प्रेशर फ्रॉम आवर हेडक्वार्टर. वो बंदा वहां से रिकमेंड होकर आया था और ये डिफेंड नहीं कर पाए, उसको चैलेंज नहीं कर पाए और उसको हायर कर दिया. अच्छा, जो आप बात कह रही है ना कि रिक्वायरमेंट रेज होती है डिपार्टमेंट से, नो डाउट डिपार्टमेंट से रेज होती है, लेकिन हम भी बजटिंग करते हैं ना. हम जीरो बेस्ड बजटिंग करें, आप उसके डिपार्टमेंट को चैलेंज करें ना कि आपकी एग्जिस्टिंग टीम इतनी खड़ी है, ये टारगेट्स हैं, आप सेल्स में एक बंदा और ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ये लेकर क्या आएगा, एग्जिस्टिंग में क्या इंक्रीमेंटल ऐड होगा. इवन वो अगर टॉप मैनेजमेंट के साथ से अप्रूवल करा लाते हैं, आप चैलेंज करें उसको, सीईओ को, कि भाई ये एक्स्ट्रा बंदा जो ऐड ऑन हो रहा है इसकी क्या वैल्यू एडिशन है, इसके नंबर्स बताएं ना. और Okay. जो केपीआईज है ना, वो टोटल आपकी डोमेन है. केपीआई सेट होता है सीईओ का, और केपीआई नॉर्मली जो मैंने इंडस्ट्री में देखा है, जो बेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, वो 70-30. 70 इज हार्ड टारगेट्स एंड 30 इज सॉफ्ट स्किल्स एंड सॉफ्ट टारगेट्स. जो हार्ड टारगेट सीईओ का सेट होता है, मोर लेस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीएफओ का मोर लेस सेम ही होता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता. न्यू बिजनेस और इस तरह की चीजों का डिफरेंस होता है. यही केपीआईज नीचे टीम में ट्रांसलेट हो रहे हैं, इन्हीं को कन्वर्ट करना होता है. और ये केपीआईज डिजाइन, स्मार्ट केपीआईज डिजाइन एचआर ने करने हैं. जो सीईओ का सेट हो गया वही नीचे ट्रांसलेट करने और उसी पे अप्रेजल करनी है. तो Sir, आप HR वो तो decides. ना कहें कि No, sir, just the CEO gives us the departmental KPIs, not the individual KPIs, right? We deliver the departmental KPIs, and the individual KPIs are always set by the team lead, not by the HR. HR just vet them from their perspective that okay, the person has been hired and this KPIs have been set for them. So there's a difference. Second thing is, if you call on, like, we are just like having sales department as an example. So I would add I'm just giving you an example. We set a call center in our office just to make the sales better. However, I was not in favor of setting a call center because I did not get that there were already 9 people working in the sales department, and yet we need of a call center. So what happened was we set the call center because CEO wanted that. We said that, right? We set the call center, and then the finance department came to me as a head of HR. They said, like, ma'am, what you have done, we did not need it. I said, I have conveyed it to the CEO. I have conveyed him because the sales team has said, like, we have like 300,000 leads in the funnel, and nobody is going to cater them. So we are lacking behind, and this and this and that. So CEO gave them the approval, and they set the call center. What happened was, after 3 months, we had to dissolve the call center. So where does HR comes there? What should HR do? है ना, अगर आप पीएनएल को समझ रही हो ना, और बजटिंग आपके पास बजटिंग अवेलेबल हो, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में बजट बनते हैं उसको ऐसे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ना कि जिसने सपोर्ट करने, जिसने एचआर को ही नहीं पता होता. अगर आपको पता हो ना कि मार्केटिंग और सेल्स का बजट कितना है, और अगर ये नया कॉल सेंटर डेवलप कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट क्या आनी है, तो एंड ऑफ द डे जो उसकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट है वो कितनी इंक्रीज कर रही है, उसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा है. और देखें, सेल कॉल सेंटर से रेस करना या सोशल मीडिया के थ्रू रेस करना, आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है. आपने कितना उस पे एक्सपेंस आउट करना है, वो स्मार्ट जजमेंट है. और अगर एचआर और फाइनेंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हो तो देखें, सीनियर मैनेजमेंट अकेले कोई डिसीजन नहीं करती जब तक आप लोग सिंक उनको सही से अप्रेज ना करें. अगर एचआर सिर्फ जाके कह दे कि नहीं जी, ये तो इतने सारे बंदे हैं, तो ये और क्यों रख लें. They don't listen to you. नहीं मैम, आप उनको एनालिटिकली जब जस्टिफाई करेंगी ना कि ये नंबर्स हैं, आप जस्टिफाई कर दें ये कॉस्ट एक्सपेंस आउट करने के बाद इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट क्या है, वो सेल्स वाला बता दे आपको. नहीं बता पाते जब आप. सॉरी टू कट यू शॉर्ट. देखिए, हिना की बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन एचआर को ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट किसने देना है? देखिए, बजटिंग की एक्सरसाइज सारी फाइनेंस के पास है,
फाइनेंस क्यों नहीं बाय डिपार्टमेंट बजट एलोकेशन करके डिपार्टमेंट को पाबंद करता है कि दिस इज योर बजट फॉर द ईयर, इफ यू ब्रीच इट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू नो इट्स नॉट एचआर जॉब टू इंश्योर कि जी रिटेल का बजट रिटेल विद इन बजट रहे, मार्केटिंग विद इन बजट रहे। इट इज फाइनेंस जॉब। और मैंने देखा है मेनी टाइम्स जो ये बजटिंग वाला फिलॉसफी है ना, ये बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गई है कि आप एक एक डिपार्टमेंट के पास एक एक चीज का बजट होता है कि आपका ट्रेवल का ये बजट है, आपका ट्रेनिंग का ये बजट है, आपका रिसोर्स मैनिंग का ये बजट है। यू ब्रीच द बजट, यू गिव अ रैशनल, अदरवाइज विल स्क्रू यू। सो बेसिकली ये एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी फाइनेंस देते हैं। आई टोटली एग्री विद हिना कि जब कोई चीज गलत होती है तो एचआर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जब अच्छी होती है तो इट्स ऑलवेज बिजनेस। सो आई टोटली एग्री विद हिना। Finance take it as an interference when HR goes and asks them about the budget for the set role or for the set department. They take it as an interference and they said it, मैडम बस आपको बता दिया ये नहीं हो सकता, मैडम आपको बता दिया आप इतने में कर सकते हैं। I mean why मैडम are you hiding from us? फाइनेंस भी तो आप ही लोग हायर करते हैं ना, तो अच्छे लोग हायर किया करें, उससे अच्छा रिलेशनशिप रखा ये करें, बात, तो ये ये काम सर मिलके होता है, आपने अकेले नहीं जबरदस्त होता। बात कही है। Finance come out to be, Yes. sir, Like-minded. I am from a finance background family. My husband is a chartered accountant, so I know Great. the tantrums the finance guy give to every. We grievance hire is both running in people, the and family. all of a sudden they turn into something like, you know, the biggest enemy of the HR Very true. in the office. Very true. I नहीं, also have the same इसमें situation at home. So, अच्छा you know, I can totally understand Hina. ठीक है, I'll give my example। देखें, मैंने भी बजटिंग बहुत की है अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी बजटिंग एक्टिविटी होती है एनुअल, एचआर हर डिपार्टमेंट से अगले साल के लिए वो रैशनल्स लेता है, इंक्रीमेंट की बातें भी डिस्कस करता है, टॉप परफॉर्मेंस की बात होती है, केपीआईज आप खुद डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं कि अपने एम्प्लॉयज की केपीआईज का डेटा दें, हु इज द टॉप परफॉर्मर, फिर वो बेल कर्व बनता है। ठीक है, एग्रीड? या उसमें टोटली आप ही फाइनेंस को भेजते हो ना जबरदस्ती, डेटा। सॉरी फैसल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जबरदस्ती का बेल कर्व बनता है, उस पर तो मैं कभी भी चले, एग्री नहीं मैं करता। कहता हूँ जबरदस्ती करते हैं, चले मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसी को बायस भी करता हूँ, ठीक है, कहीं बाय तो वाई इज एचआर देयर? एचआर मुझे क्वेश्चन करे ना, किस चीज का बेल कर्व बना के दिया है आपने? करे ना मुझसे, बजट की मीटिंग्स, प्लेटफॉर्म ओपन है, आप आके करें ना, मुझे मुझे करें कि भाई आपने ये जो नंबरिंग दी है अपने इस टीम मेंबर को या टीम लीड को, ये हमें इसमें ये बायसनेस नजर आती है, करें, मुझे आके चैलेंज करें। इसी तरह बिजनेस को चैलेंज करें, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है आपके, आपका सेल्स टीम का हेड है, आपका It's a मार्केटिंग very टीम good का point. हेड है, आपके पास तो पूरा फोरम है, आप उस फोरम को क्यों नहीं चैलेंज करें? अगर ड्यूरिंग द ईयर मार्केटिंग टीम ने कहा कि भाई हमें 5 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, बेस्ड ऑन व्हाट? आप उनसे लेके रेवेन्यू ग्रोथ क्या दोगे भाई? ठीक है, अगर तो बिजनेस मांगता है, ऑपरेशंस मांगते हैं, तो बताओ कॉस्ट सेविंग्स क्या दोगे भाई इसके अगेंस्ट? ठीक है, या तो मेरा ऑपरेशन बढ़ रहा है तो आपका रैशनल जस्टिफाई करता है, क्योंकि मैं ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, तो आई नो कि वहाँ लेबर इंटेंसिव बहुत होती है। ठीक है, तो वहां पे आप रैशनल क्या रखते हैं कि यार कुछ चीजों में कॉस्ट सेविंग्स होंगी। आप या तो ये बताओगे कि यार मैं यहाँ लाइन सुपरवाइजर्स को ऐड कर रहा हूँ, वो आप बिजनेस से जस्टिफिकेशन लोगे ना, देन यू विल प्रेजेंट योर केस टू द मैनेजमेंट कि भाई इस साल का ये जो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स का बजट है, इतने लोग हम हायर कर रहे हैं, आइटरेशन से बचने के लिए ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। आप बताएं ना, आइटरेशन क्यों नहीं उस पर आप लोग डिस्कस करते कि भाई हम ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हमने ये ट्रेनिंग प्लान की है, ये सॉफ्ट स्किल्स प्लान की हैं, इन डिपार्टमेंट्स के हेड से हम मिलके हमने ये ट्रेनिंग का जो है बजट तय किया है। आई डोंट थिंक फाइनेंस कभी भी आपको इस बात पे रोकेगा। क्यों आई मतलब एग्री। विल बिल्कुल यू ठीक है। विल यू अब विल मैं यू एक नेक्स्ट लेकिन क्वेश्चन टैकल? बेल लाना कर्व चाहती पे आई हूँ डोंट विथ ऑल योर परमिशन। यस बेल मिस कर्व तैयबा। बेल कर्व पे आई डोंट एग्री। बाकी आई टोटली एग्री कि दिस इज मिस एचआर बेल जॉब कर्व टू के ऊपर थोड़ा जस्टिफाई सा द मुझे कॉस्ट भी एंड गेट इशू द है। जस्टिफिकेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अच्छा, ये भी देखें, मैं एचआर की तरफ से भी आता है कि बेल कर्व बना के दें, आप कोई और नहीं गेज दे लेकिन दें, आप जबरदस्ती कुछ का ऐड बना कर के किसी दे। और गेज पे जो काम करके स्टाफ है बता ना देंगे। उसकी परफॉर्मेंस की विजिबिलिटी उसके डिपार्टमेंट हेड या उसके लाइन मैनेजर के पास है। एचआर कभी जाके फाइट नहीं कर सकता कि हाउ डेयर यू कि तुमने उसको 5 दे दिया या 4 दे दिया, बिकॉज आई डोंट Agree, द agree. पर्सन डोंट वर्क विद मी, एचआर आई न्यूट डोंट नो यू देखें, आर फिर द आपने बेस्ट खुद दैट। ही अपनी न्यूट्रलिटी खराब कर दी, आप No, no, it's न्यूट्रल not होंगे। about whether देखें, it's being This is rational. where I It's being said, rational. this is why I said that then team lead will go up to the higher management and tell them that, hey, HR is interfering in our department. तो आपके Yes. पास HR is रैशनल सॉलिड nudging. होना चाहिए। नहीं,
HR के नहीं पास नहीं अगर solid sir, rationale है, when you have to defend somebody, even in the finance department, we have seen people who were sitting there doing only bookkeeping, and the finance head is defending them that this is their KPI, they are doing it, and there is no performance, there is no nothing. They're not adding value in any way, in any तो इसका like मतलब what एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि जैसे अभी फैसल साहब ने मेंशन किया कि फाइनेंस एंड बिजनेस शुड आल्सो बी आस्क्ड questions when they do yeah. not earn revenue by hiring that particular person कि why actually did it happen because आपने तो रेफर किया था and you hired this guy from asking the senior management to approve. तो फिर आपके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, एचआर के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन कर सकें, यही बात है ना. तो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब एचआर किसी चीज के बारे में सजेस्ट करता है तो उसको भी वैल्यू करना चाहिए, इंटरफेरेंस की जगह उसको वैल्यू कंट्रीब्यूशन समझना चाहिए. So I believe this is an important stance, and each department should be given enough value so that they feel appreciated. HR should also be appreciated as finance and business are being done this way. अच्छा, anyways, let's move on to the next question. HR से पूछना चाहूंगी, प्राइमरीली मिस तैयबा से पूछना चाहूंगी, काफी देर से उनको बोलने का मौका नहीं मिला, तो आप बताइए कि हाउ डू यू ट्रांसलेट इंटेंजिबल एलिमेंट्स लाइक एंगेजमेंट और लीडरशिप इनटू फाइनेंशियल वैल्यू. क्योंकि देखिए ना, अभी बात ये हो रही है कि जब तक नंबर्स नहीं आते फाइनेंस सुनता नहीं हमारी, तो फाइनेंस को दिखाने के लिए नंबर्स चाहिए. तो हाउ डू यू ट्रांसलेट दीज इंटेंजिबल एसेट्स लाइक दीज क्वालिटेटिव engagements of employees, or maybe leadership qualities or behavioral engagements that you ask for. आप किस तरीके से इसको क्वांटिफाई करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट वैल्यू इन द आईज ऑफ फाइनेंस? देखिए, हमने अपनी इंटरनल कंट्रोल के लिए देयर आर सर्टेन मेट्रिक्स विद माय करंट एम्प्लॉयर भी और इससे पहले भी बैंकिंग सेक्टर में, तो इट्स वेरी रेगुलेटेड. सो ऑब्वियसली ठीक है. यू हैव सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज द मार्केट बेंचमार्क. फॉर एग्जांपल, इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर में द एट्रिशन रेट इज से roughly 20% is the normal attrition rate that the bank are facing. So if we are able to maintain an attrition rate at 13% or 17% at Saudi Park, to us this is an achievement, because it's better than the average attrition rate in the market. Similarly, if you have aggrieved employees, we have a structured framework of exit feedback analysis or of different forums that we use to hear, we have the pulse of the organization. So this is primarily a hardcore information and the data that we have, and we present at multiple forums, Mancom may, during budget meetings. So generally, structured banking sector में कि you don't go to finance to have the budget approved. There is a committee, there are due deliberation, there is a complete due deliberation process, and all the metrics data, it is available. So whether it is coming from the exit feedback forms, the most pronounced leaving reason kya hai? Was that the compensation? Was that the work pressure? So these are the data. This information is being tabulated. Similarly, engagement ke andar, if you have aggrieved employees, the employee satisfaction survey tells. So there are a couple of surveys, there are a couple of tangible things available, which help us to gauge these kind of मतलब इस तरह के metrics जो आप as such शायद उस तरीके से बता नहीं सकते. So there are a couple of things in HR that we are doing, and we present at every available forum जहाँ पे हमें मौका मिलता है. बिल्कुल ठीक है मैम. इस बात के ऊपर मैं थोड़ी सी एक एडिशन करना चाहूंगी. आई हैव बीन इनटू क्वालिटी इन अ बैंकिंग सेक्टर एंड वी यूज्ड टू हैव मैट्रिक्स एज इन percentages of our KPIs. Say for example, the turnaround times that you calculate, average number of calls that you check, or maybe the client customer satisfaction that is gauged by either excellent, very good, good, fair, or not good. So there are number of like attributes and types of quality checks that you can have on your employees also to check if they are performing well or not. So yes, these can be measured. So it is quantified. But again, you need to have those metrics in place and everybody to follow it. And again, surveys are another source of finding out how you're performing. So wonderful answer. Yes, Miss Hina, what's your take on it? You see, every tangible initiative that we take in HR may not have the immediate outcome as a, but it does have a business outcome. Whenever we train the employee for the qualitative KPIs or any, when we do the ROI for qualitative KPIs, it is it gives you impact. It does have a financial impact because they
the more you are going to train them, the more they are going to stay with you, the more they are going to grow with you, the more they are going to impact your business. Like if I talk about the education sector, the more you are going to train the teacher, the more they are going to stay, and the more they are going to help your business to improve, because students come with the teacher, right? Secondly, I have worked in FMCGs and so many sectors along with that, in IT and all. So the trainings, which is like, seem like a doesn't seem like a good, when we ask our employees to take trainings outside, or we support them financially to get the certain trainings in IT department maybe. So they does not see it. It looks like कि ये हम कोई individually किसी को benefit कर रहे हैं, किसी individually employee, but later on ये आपके business को हर हाल में impact करता है. It does impact your business, that you are having a certified person sitting in your department. Maybe you are putting less spending on them, maybe in terms of salary you are not paying them a lot, but आपके business को वो उसी तरह impact कर रहा है क्योंकि आपने वो investment उनके training needs के ऊपर की है. Plus if you are making them regular, you are making them disciplined, you are grooming them as in their personality, it does have an impact on your business, because that's how you are going to present your people. बिल्कुल So ठीक है, these, बिल्कुल ठीक है. yes, अच्छा, these are. yes ma'am. Okay then, my next question is from finance. Why do workforce plans often appear misaligned or unrealistic from a financial standpoint? आपके पास businesses भी अपनी requirement लेके आते होंगे ना, we need to hire people. So you're not the only business that the organization has. You're one department, right? And you're approving on costs and revenues. But there are a number of departments other than finance that are also coming up with their talent requirements. So when they come up with their talent requirements and HR brings in people to assist them, how much do you think it is aligned and realistic and should be appointed? We should have this cost on hiring. How often do you think that? Yeah, sorry, Murtaza, I think never. देखिए फाइनेंस कभी भी बिजनेस, देखिए बिजनेस इसी तरह ग्रो करेंगे. आज आपके पास जो है, जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो आईटी है, ठीक है. एंड इट्स ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री. वहाँ पे आप टैलेंट को ही हायर करोगे, ठीक है. वहाँ पे आइट्रेशंस भी होंगी, क्योंकि बहुत सारी आपके पास नई बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारी और इस तरह की भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो भी साथ में अपने पैरेलल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और वो उस पर काम कर रही हैं, ठीक है. तो टैलेंट रिक्वायरमेंट तो आएगी, ठीक है. इसी तरह जैसे हिना ने कहा कि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इनिशियल कॉस्ट नज़र आती है, बट मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि HR हैज़ ऑल द राइट टू से कि भाई ये फ्यूचर प्लान है, दिस विल बेनिफिट द कंपनी इन फ्यूचर. आइट्रेशंस रुकेंगी, आपके पास टैलेंट रुकेगा, टैलेंट डेवलप भी होगा. देखिए बहुत सारे फ्रेश यंग ग्रेजुएट्स भी आएंगे, उनको कौन ट्रेन करेगा? HR ही लीड लेगा ना, HR ही लेकर आएगा. बिजनेस पहले रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे ये फ्रेश स्टूडेंट्स चाहिए या इस तरह से, क्योंकि वो एक आपकी इनिशियल कॉस्ट भी कम होती है, उनको आप इतना पे स्केल नहीं देते बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड. बट बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप फ्रेश टैलेंट से कितना काम कराओगे? आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग देनी है, तो वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस है. वो क्यों है बिजनेस? क्योंकि उससे बिजनेस ग्रो करेगा. वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है HR को लेकर आना है कि ये कॉस्ट नहीं है, ये फ्यूचर कैश फ्लो है आपका, या आप कोई कॉस्ट सेव करके बताएं कि भाई इससे आइट्रेशन हमारे हिसाब से इतनी रुकेगी. ईयर एंड में बजट होते हैं, आपने जो भी एक्टिविटीज की, जो भी ड्यूरिंग द ईयर आपने ट्रेनिंग्स करवाई, भले बिजनेस की कॉल्स थी, हो सकता है बिजनेस ने बहुत टेक्निकल किस्म की ट्रेनिंग्स कराई हैं. आस्क बिजनेस कि भाई आपके पास कितना रिटेंशन रहा. आप देखें हमेशा अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, जब आप ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं तो यू ऑलवेज सर्व देम विद अ फीडबैक फॉर्म. तो उसको कैपिटलाइज करें, वो भी एक डेटा है, उसको एनालाइज करें. आज तो चैट जीपीटी पे भी आप अगर फॉर्म्स डाल दें तो वो आपको एक अच्छी सी एक एनालिसिस और रिपोर्ट और चार्ट और ग्राफ बना के भी आपको जो है ना एक अच्छा सा एक बना देगा फॉर मैनेजमेंट पर्पजेज या फॉर रिव्यू पर्पजेज, कि आप ये पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं. तो आज तो आपके पास ओपन फोरम है. तो आई बिलीव HR को सिर्फ अगर अलाइनमेंट उस सेंस, मैंने आपको फाइनेंस के उस पर्सपेक्टिव पे बताया,
कि आपका पर्सपेक्टिव अगर आपने खुद कहा कि लॉन्ग टर्म है, तो जस्ट कन्वे दिस इन अ फॉर्म कि वो मैनेजमेंट और फाइनेंस भी समझे, तो यू विल नॉट बी have any trouble getting a yes from finance or even management. जी मुर्तजा साहब, मुर्तजा। आपका क्या टेक है इस पर? एक्चुअली क्वेश्चन आपका आई प्रिज्यूम स्लाइटली डिफरेंट था कि लाइक अदर डिपार्टमेंट में हायरिंग हो रही होती है तो उसको फाइनेंस चैलेंज करता है कि नहीं करता या करना चाहिए। एक्चुअली होती हैं और ये रूटीन की बात है, लेकिन अगर आपकी चीजें स्ट्रक्चर्ड है ना, नॉर्मली जो सी लेवल की अपॉइंटमेंट्स होती हैं बोर्ड पे अप्रूवल हो रही होती है, और इस तरह डिफरेंट फोरम्स डिफाइंड होते हैं कि कौन उसकी अप्रूविंग अथॉरिटी है, और जो अप्रूविंग अथॉरिटी होती है वो उसका एनालिसिस सबसे फीडबैक लेने के बाद ही डिसीजन कर रहा होता है। ऑब्वियसली फाइनेंस डिसीजन नहीं कर रहा होता, लेकिन नॉर्मली फाइनेंस बोर्ड में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन अलग नहीं रख रहे होते, तो सीएफओ ही एज कंपनी सेक्रेटरी भी काम कर रहा होता है, तो यूजुअली बोर्ड में प्रेजेंस होती है, नहीं तो अकाउंट प्रेजेंट हो रहे होते हैं, एनुअल क्वार्टरली ऑडिट कमेटी में सारा कुछ चल रहा होता है। तो डिसीजंस जो सीनियर्स के हैं वो तो ऑब्वियसली वहां पे इनपुट हो रही होती है, उस पर डिस्कशन भी हो रही थी, उसका एनालिसिस भी फीडबैक भी लिया जा रहा होता है कि भाई हमारा प्रोपोर्शनेट क्या चल रहा है, हमारा सपोर्ट फंक्शन कितने परसेंट पे चल रहा है, कोर फंक्शन कितने पे चल रहा है, इस डिपार्टमेंट की क्या कॉस्ट चल रही है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसका नॉर्मली एचआर भी उसमें सपोर्ट कर रहा होता है, टाइम एंड मोशन स्टडी करके कि नॉर्मली प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, एडिशनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या मार्केट में जिस क्वालिफिकेशन का सर्च कर रहे हैं तो उसकी मार्केट बेस्ड सैलरी क्या है। तो ये जॉइंटली हो रहा होता है, लेकिन वो जिस तरह हिना ने कहा कि बहुत एक्टिव उसमें नहीं होता, मतलब डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं होता, हमसे फीडबैक जरूर ली जा रही होती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। और बहुत वैल्यू है फाइनेंस के फीडबैक की, पता है, डिसीजन टेबल टर्न बिकॉज ऑफ व्हाट फाइनेंस स्पीक अबाउट, तो उसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट कोई पड़ जाता है, आपको नहीं एक्चुअली लगता? समीर, अगर प्रॉफिटेबिलिटी, मेन सारी एंटिटीज की कोशिश होती है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, तो प्रॉफिटेबिलिटी नॉर्मली बढ़ाने का दो तीन बेसिक तरीके होते हैं। आप रेवेन्यू बढ़ा रहे होते हैं, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको सेल्स बेहतर करनी होती है, नीचे प्रोडक्शन टीम भी बेहतर करनी होती है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट को ज्यादा नहीं छेड़ सकते, टू सम एक्सटेंट छेड़ सकते हैं, उसमें एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और वो एफिशिएंसी केपीआईज और एचआर की मॉनिटरिंग के बगैर वो पॉसिबल नहीं होती। और सबसे जो कोर फंक्शन होता है वो आपकी फिक्स कॉस्ट की रिडक्शन होती है। फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन वो फाइनेंस कर रही होती है कि फिक्स कॉस्ट में कौन से ऐसे ऐसे फंक्शन हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, या एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई करके नंबर्स में तो मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स एंड केपीआईज वो चीजें ऑब्वियसली एचआर की सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये सारे फंक्शन मिलके ही काम करते हैं, तो एंड प्रोडक्ट आती है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है, ओवरऑल कल्चर बनता है। अच्छा, इसमें एक बात मैं और करना चाह रहा था कि जो मैंने अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है कि उनका जो विजन और मिशन होता है ना, आप किसी को भी बुला के पूछ लेना, आज आप आईसीएमए में बाहर निकल के किसी से पूछ लेना कि आईसीएमए का नहीं विजन पता क्या है, होता मिशन क्या है, किसी को नहीं पता होता। ऐसे। लेकिन ये एनवायरनमेंट अगर एचआर इसको थ्रू आउट उसको डिफरेंट जगह पर डिस्प्ले करे, उसको लोगों को समझाए, लोग समझे, लोगों को एटलीस्ट पता हो कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कर क्या रहे हैं। अगर विजन एंड मिशन समझ में आता है ना, तो फिर नीचे स्ट्रैटेजीज, और फिर लोग सारे लोग पार्टिसिपेटिव उसमें काम कर रहे होते हैं। मैंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं जिन्होंने डिफरेंट, और स्पेशली जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जहां प्रोडक्शन एरियाज होते हैं वहां पे उनके वहां पे बड़ा ये बड़ा उन्होंने डिस्प्लेड लगाया होते हुआ है, हैं कि बिल्कुल ऐसे। उनके विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, और उनकी वैल्यूज क्या है। तो ये चीजें बड़ी मैटर कर रही होती है। ये सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये फाइनेंस तो कर ही सकती है, तो एचआर नहीं करना है। तो हम सपोर्ट जरूर कर सकते हैं कि आप वो जब कर रही होती हैं तो हम उसकी जो कॉस्ट होती है तो वो हम पे ऑफ कर दिया करें। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। it should अच्छा, be अब part हमारा of एचआर से culture. सवाल है।
Yes. This is part of the culture, and HR is bringing that culture to the institution, and we should all support it. And now the question is to HR: in an environment where budgets are tight, how do you defend HR initiatives that do not show immediate financial returns but are critical for long run? Ji Tayyaba. अच्छा, for example, HR के initiatives में, for example, if it's about hiring, so it Yeah. depends on the organization as well. If the organization is growing organization and in the phase of transformation, so there are a couple of hirings which are critical. So it's very easy to defend. There are certain initiatives, जैसे हिना ने बताया कि जिसकी implications आपको long term में नजर आती हैं, उन cases को defend करना मुश्किल है. लेकिन there are a couple of areas in HR, for example, capacity building. If the organization is growing, you need people to grow with the organization. Obviously, training is something, capacity building is something which can be justified. Similarly, but yes, under employee engagement, culture is very important. It can also be justified. But there are few initiatives जिसकी justification जो है ना वो immediate basis के ऊपर उसकी bottom line पे impact जरूर है, लेकिन there are couple of initiatives जो फौरन आप उसको जो है ना वो I think कि उसको justify नहीं कर सकते उस cost को. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आप क्या समझती हैं मिस हिना? आपने सवाल लिया था. I thought you got disconnected. No, yes, I got disconnected. I did not hear. Okay, all right. I'll repeat the question for you. In an environment where budgets are tight, how do you defend HR initiatives that do not show immediate financial returns but are critical for the long run? You see, I have been criticizing finance a lot of time, but I think that HR should make it under budget when we know that there are budget constraints. Then we should, as a HR, be taking the initiative which are, which are unavoidable. There are some initiatives which are unavoidable at times, but I don't think so. HR is taking if I'm trying to hold let's say, a webinar on my campus, or my institute, I can wait for a month or two to hold it, right? There is nothing that is unavoidable for the time being. So I think we should be. मुझे कोई ऐसा initiative HR का नजर अभी एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आ रहा जो मुझे ये लगे कि ये बहुत जरूरी है और अगर ये आज या इस महीने में नहीं हुआ तो क़यामत आ जाएगी. So if there are which means that HR can support finance. Yes. When the situations are critical, when the budget is very stringent, and the things, maybe the economic situation as it's running these days. But as finance is continuously telling us that HR should present their case that, hey, we need this, then finance should also present their case to HR that, hey, we have these constraints and we cannot do it at the time. So we should listen to it. Agreed, ma'am. With evidence, with proper evidence, finance, please listen. With proper evidence, you have to come to us and tell us these are the reasons we are unable to do it right now. And later on, you would come to us. Now the situations are good. Let's do it. So, that's acceptable, Hina. Anyways, so moving on to the questions, a few questions have been asked from our distinguished participants also. I'd like to ask those questions now. On Raza from Bank Al Habib. Mr. On Raza from Bank Al Habib has asked a question. Who contributes more directly to business success, the department managing people or the department managing numbers? I can respond to the question. Anji, please, will you? I think both of them. The answer is both of them. If HR has hired the right person, he is going to be the driver of the revenue. And if HR has hired the wrong person, he will destroy everything. So I think both the HR and the business, both. Okay, so that's a very diplomatic answer, by the way. What do you think, finance? Hand in glove. मतलब HR business partner के बगैर अब finance, very difficult to gauge success without HR's involvement. This is my sense. Very true. Very true. Anything from your side, Murtaza sir? You agree to it again? Agreed. Finance, HR के बगैर targets achieve करना बहुत मुश्किल है. मतलब मैं इंडिपेंडेंटली मैं और CEO बैठ के सेल्स की टीम को कितना खींच लेंगे.
आप उनके टारगेट्स पे आप उन्हें क्या गोली तो मार नहीं सकते, तो एनालिसिस ही करना होता है। लेकिन जो उसके इंक्रीमेंट्स और ये सारी चीजें, जो प्रमोशंस, पे रेज, वो तो एचआर ने उसका एनालिसिस करके एंड ऑफ द डे बताना है, उसका बोनस बनता है नहीं बनता। तो वो हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी ओवर कमिटमेंट्स होती हैं कि तो ये सारी चीजों में अगर एचआर साथ नहीं होता तो ये स्टैंड अलोन तो आप अचीव ही नहीं कर सकते। टीम अचीव करती है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कभी भी कोई टारगेट अचीव नहीं करता। बिल्कुल ऐसी साइलोस है। में काम नहीं होता। Integration and collaboration between different या departments श्योर। actually brings the results. Very true. मकसूद साहब सवाल कर रहे हैं, how does retention of employees help in increasing in productivity? I mean mix of both previous and fresh employees. Well, So, retention, I think, is a employer branding as well. Retention is something, देखिए, if you have satisfied employee who is continuing with you, the person will have organizational knowledge, the person will be trained person. Even if you are injecting new resource, you will have a blend of experience and fresh. So, this is something which is ideal. And similarly, I say that retention or a person who is a happy employee, अगर आपके पास दो एम्प्लॉयज है, वन इज एग्रीव्ड एंड वन इज हैप्पी, both interact with internal customers and external customers, you will find different way of dealing. So I think retention is the key, culture is the key, so they have implications. yes, अच्छा, इसमें मैं भी because थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। मकसूद साहब का जो क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या ट्रेड एंड ट्रिक्स चल रही है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डर है। तो एक बिल्डर का पुराना रियल एस्टेट वाले जो प्रॉपर्टी वाले बंदे होते हैं कि वो जिस तरह उनकी इन्वेंट्री को सेल कर रहे होते हैं, और एक नई जो जनरेशन है, जनरेशन जी हो गई या द यंग पीपल, तो वो लीड्स कैसे जनरेट करते हैं और वो कैसे सेल कर पाते हैं, तो वो ऑल टुगेदर वो ग्राउंड्स ही बदल जाते हैं। उनके पास लीड्स की इतनी ज्यादा क्वांटिटी होती है, जबकि कन्वेंशनल लोगों के वो पुराने ताल्लुकात और वो उस चीज पे चल रहे होते हैं। इसी तरह जब आप कहीं मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं तो नई टेक्नोलॉजीज जो पढ़ के आ रहे होते हैं, और एक कन्वेंशनल जो पुराने लोग होते हैं, नो डाउट उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन नई टेक्नोलॉजीज उसमें वैल्यू एडिशन कर रही होती है। आपको बैलेंस रख के चलना होता है, और ये चैलेंज रहा है। हमारे पास जो पुराने सीनियर लोग थे, उसको लाइक प्रोडक्शन वाले 60 साल कहते थे, मतलब 60 years ऑफ एज। तो एक टाइम पे हमारे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जी जो 60 years से उनको सबको फारिग कर दें। वी चैलेंज देम कि भाई इस तरह आप फारिग नहीं कर सकते, आपको सक्सेशन प्लानिंग करनी पड़ती है, और अगर इनको आप वाइप आउट कर देंगे तो आपकी मशीन्स को जितना बेहतर वो समझते हैं, आपकी नई जनरेशन उतनी नहीं समझती। तो आपको इनको टाइम देना चाहिए, नीचे ट्रेन करें, एंड देन तो ये बैलेंस रख के चलाना होता है। because they have बिल्कुल the ऐसे ही legacy knowledge, आपके पास यस, legacy एग्जैक्टली। knowledge बहुत इंपॉर्टेंट है। और Yes. जैसे इन्होंने कहा कि आपके पास इसके इन्हीं से ही आप सक्सेशन प्लानिंग डेवलप करते हैं। जो पुरानी जनरेशन और या नई जनरेशन या पुराने एम्प्लॉयज या नए एम्प्लॉयज हैं, उनका गैप इसी तरह ही फिल होगा, क्योंकि वो एक लेगेसी, एक कल्चर लेके चल रहे हैं। आपके जो नए एम्प्लॉयज आएंगे उन्हीं से लर्न करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो खुद ही अपने अंदर वो कल्चर और वो सेटिस्फेक्शन उनको ऑटोमेटिकली बिल्ट इन आएगी। बिल्कुल कहते हैं ना ठीक है वो सर। कि कल्चर ईट स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। But तो that again is a आपके जो cost. पुराने एम्प्लॉयज है Please keep that in mind. That again is a cost. अच्छा, Anyways, ब्रेकफास्ट इज ऑन फाइनेंस मोहम्मद बस। मौजम अली जी सर। वो कह रहे आई सेड कि breakfast on ब्रेकफास्ट इज finance. ऑन फाइनेंस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मोहम्मद मौजम अली साहब का सवाल है, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पर्सपेक्टिव, हाउ कैन एचआर एंड फाइनेंस jointly develop a workforce planning model that balances business growth, employee capability, productivity, and cost efficiency without compromising long-term organizational sustainability? A wonderful question. How will you develop a workforce planning model like this? बेस्ट Sure. अपॉर्चुनिटी इज एनुअल बजटिंग टाइम। आपके Yes. पास महीना 1.5 महीना होता है। फाइनेंस Yes. की टीम जो प्लानिंग का मैनेजर है, आपका एचआर का मैनेजर है, बैठे जरा एक मीटिंग कॉल, एचआर का मैनेजर ही मीटिंग कॉल कर ले 2 घंटे के लिए कि भाई मुझे ये चीज़ों पे आपसे जो है, इवन आई एम स्ट्रगलिंग टू बिल्ड केपीआईज, तो आपको फाइनेंस हेल्प करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो दैट्स द बेस्ट टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेज व्हाट यू वांट
to discuss with management or want to present to management. And I think इसमें I'll add कि वो ज़्यादा effective ऐसे हो सकते हैं कि there are certain HR realities which only HR understands, and there are certain financial realities which finance understand. In Faisal साहब बिल्कुल rightly put कि if you'll work together, जैसे for example शुरू में कहीं बात हुई कि जी अब आपके पास financial constraints है, आप बंदा हायर नहीं कर सकते. You know, financial sector में, banking sector में, you get good resource at Karachi and Lahore many times certain specialized roles के लिए. अब अगर हम कोई कराची का बंदा हायर कर लें तो चीखो पुकार शुरू हो जाती है कि यार व्हाई दैट एक्सपेंसिव, रिलोकेशन यू आर पेइंग, कॉम्पनसेशन यू आर पेइंग. So you know, there are certain HR realities, there are certain finance realities when we sit together. So फिर उसके बाद एक effective planning which is long term sustainable. I totally agree with what Faisal said. Very true, very true. Now we have one very important point to make. There is a capex and there is an opex. ठीक है. आपका बजट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एक ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का बजट होता है. वेयर दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल फोर ऑफ यू, वेयर डू वी पुट हायरिंग? Is it a capital expenditure or an operational expenditure? I think it's Yeah. operational. Initially, it is operational. Operational, Initially, yeah. I'll build this cost in my P&L. मैं उसको operations का part बनाऊंगा. But HR के पास जब business लेकर आया है तो HR has the opportunity to ask ये long term vision के साथ किस तरह aligned है. जैसे कहा ना, culture है, विजन और मिशन स्टेटमेंट है, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है, या हमारी कहीं कॉस्ट कटिंग या कोई कॉस्ट एफिशिएंसीज की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये मेट्रिक कहाँ गेज कर रहे हैं हम और कितने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ हैं. उसको एनुअली जो बजट एक्टिविटी होती है, जो KPI या जो आपका इंक्रीमेंट्स की या प्रमोशंस की एक्टिविटी होती है, उसमें यू कैन ब्रिंग इट अप टू द बिजनेस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और आपका फाइनेंस हेड या आपका मार्केटिंग हेड है, बिजनेस हेड है, कि भाई आपने पिछले साल जो ये हायरिंग की थी, ये जो हमें बजट आपने एलोकेट दिया था, जो हमने आपको हायरिंग की, हाउ सेटिस्फाइड हुआ, या आपकी क्या अभी भी कोई कंसर्न्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं ट्रेनिंग. तो ये अपॉर्चुनिटीज तो आपको हर वक्त मिलेंगी और ड्यूरिंग द ईयर भी आपको हर वक्त मिलती रहेंगी. बिल्कुल ठीक है. तो सर हम जब ये कहते हैं कि ये ह्यूमन कैपिटल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर बजट में ना डालें और हम एज एन HR एक करियर पाथ चॉक आउट करें बिल्कुल और करियर पाथ बिल्कुल. को डिवाइड करें ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years और 15 years डाउन द लाइन के. भाई MTO हायर किया है मैंने, तो ये मेरे साथ 15 साल इस तरह चलेगा और मैं इसको 15 साल बाद डिपार्टमेंटल हेड देखती हूँ या देखता हूँ, HR ये बताए और ये बताए ये इसका करियर पाथ, ये लेडर मैंने चॉक आउट कर दिया है, ये देखें ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी. इट्स नॉट अ operational expenditure budget, rather a long term capex budget, so it should come in that. तो ये अगर HR थोड़ा सा दोनों पर्सपेक्टिव, मैंने कहा ना, convincing इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं. फाइनेंस हाँ शायद जी उसको इनिशियली उसको बोलेगा कि मेरा बिल्कुल बिल्कुल, एम्प्लॉय क्योंकि मुझे तो एक्सपेंस जो है ये वो लगता बढ़ा हुआ है है. ह्यूमन कैपिटल Under the कहते हैं assumption कि कि आजकल short के term क्यों जमाने लेते में हैं. 15 साल चले आपके साथ. Under the assumption कि आप आजकल सोच तो सकते हैं, हम प्लान तो कर and सकते anyway हैं not एज एन in HR. favor हमें of नहीं having a इंडिया भर same के resource बिजनेस for लाइन के 15 एक साथ years. में भाग जाएगा. Yeah, I agree. देखिए, you can make a plan, but you can justify your plan. उसके अलावा You देखें know, आगे तो फोर्स मेजोर्स भी हो गए हैं अभी. I think तो one should not आप stay in an तो organization for positively more आप तो than 4 3 to से 5 years. 5 साल का प्लान बनाएं हाँ कि अगर MTO आया है. हाँ यस, बिल्कुल. तो उसी को फॉलो करना है. है ना सर, और ठीक हो देखें गया, उसमें बिल्कुल सक्सेशन बिल्कुल प्लानिंग वंडरफुल भी हो गया. देखनी है, उसमें आइटरेशंस के इश्यूज भी होंगे, आपके पास पिछला रोड मैप भी होगा कि कितनी आइटरेशंस होती हैं, और उसके पीछे आप जब एग्जिट इंटरव्यू लेते हैं तो आपको बंदा बता के जाता है कि इश्यूज क्या हैं. Yes. यू कैन वर्क ऑन दैट ऑल्सो. बिल्कुल ऐसे ही है. और हमारा इमेज ये होना चाहिए कि व्हेन वी आर हायरिंग तो उसकी कॉस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 10-15 years डिवाइड कर दो कि वो मुझे बहुत ही इनएक्सपेंसिव सा पड़ जाए. अगर तो मैंने ये सोच के हायर की कि 2 साल में भाग जाना है इसने, तो फिर तो बड़े ये एक्सपेंसिव हायरिंग होगी फाइनेंस मेरे भी लिए. नहीं तो मानेगा इसलिए वैसे. अगर It's a good proposition, but finance will always book it under operating अभी हम expenditure. फाइनेंस को मना रहे हैं ना, हम फाइनेंस को ये बता रहे हैं देखिए हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट इतनी जबरदस्त रखने वाले हैं, कल्चर ऐसा क्रिएट करने वाले हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. OGTCL बंदा छोड़
छोड़कर नहीं जाता, बैंक अल अबीब बंदा छोड़कर नहीं जाता, सिर्फ SCCP बंदा छोड़कर नहीं जाता, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बंदा छोड़कर नहीं जाता. सो देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग रिटायरमेंट पर ही छोड़ते हैं. व्हाई? दे हैव अ कल्चर, द बेनिफिट पैकेजेस आर सो स्ट्रॉन्ग, द एनवायरनमेंट इज टू गुड, their learning and capacity building programs are so relevant. People feel they're getting growth in the institution only. We don't need to go anywhere else. We're getting the hike in salary and experience and skills here only. Why should move? तो There is attrition a तो खत्म ही हो negative, गया ना, retention ही Sabreen, there retention is है. a Actually, तो negative अगर मैं part. इतना There is अच्छा a negative proposal part on देती a हूँ person. finance को, There is a negative part on a person staying in organization as well. Sometimes they think that nobody would hire them if they leave from Yes. here. One thing. Yes. Second thing is their growth is stagnant. that Third thing again, is another yes, perspective. that Yes. yes, And many third thing is organizations, they are habitual to the free time the time they are spending there. Yes. and many Means organizations अगर want कि if you थोड़ी बहुत feel के attrition हो है. employees complacent, अगर employee complacent हो गया है, head of department complacent है, you have the opportunity. कल को अगर कोई headcount की request आती है या कोई operation कल को किसी चीज पे HR को engage करता है, तो you have all the right to ask him कि भाई ये जो है ये complacent team बैठी हुई है, इसकी क्या need है इसकी, आप हमें cost करते हैं तो आप ये cost भी तो अपनी देखें. Yes. बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली बिल्कुल ठीक है. सर अब हम समरीन, जा रहे हैं. जी सर. आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कोट की जहाँ रिटेंशन की बात हो रही थी. मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो रेगुलेटर हैं या जिनको प्रॉफिटेबिलिटी का इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बजटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे ये पर्क्स एंड बेनिफिट जो हैं वो बेहतर हैं. लेकिन जहाँ आप नॉर्मल एंटिटी, आपने खुद कमाना है, खुद खाना है, खुद रेवेन्यू जनरेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी, तो वहाँ काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन होती है. वहाँ पे सम टाइम आपको हार्ड डिसीजन भी लेने होते हैं, लाइक VSS टाइप की एक्टिविटीज भी होती हैं. और बड़ी चैलेंजिंग होती है कि आपने ये बड़ा हार्ड डिसीजन होता है कि आप VSS की एक्टिविटी करने जा रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, और जिसमें बहुत ड्यू डिलिजेंस होती है, और वो एक्टिविटी एक्चुअली तो HR लीड कर रही होती है, और विद हैंड्स एंड ग्लव विद फाइनेंस, क्योंकि VSS करने के लिए आपको ह्यूज कॉस्ट भी चाहिए होती है कि आपने पुरानी कन्वेंशनल टीम या तो रिप्लेस करनी है या आपने ओवरऑल HR कॉस्ट कम करनी है, आपके एक्सेसिव HR है. तो ये चल रहा होता है, लेकिन रिटेंशन पॉलिसी इज नॉट एन इजी टास्क. और ये ओवरऑल टीम अगर अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, प्रॉफिटेबल होती है, तो सबका सिलसिला चल रहा होता है. लेकिन अगर नहीं कर पाती ड्यू टू वन और अनदर रीजन लाइक इकोनॉमिक कंडीशन या आपकी एंटिटी की प्लांट मशीनरी, मल्टीपल रीजंस होती हैं कि वो नहीं ऑपरेट कर पाती प्रॉफिटेबल, तो फिर ये इस तरह के चीज़ें भी हो रही होती हैं, और ये आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं. समरीन, आपका कैमरा बिल्कुल हैंग हो ऐसे गया. है. I think she disconnected. हमारे 4 टॉपिक्स थे अभी तक, हमने एक पे ही डिस्कशन की है अभी तक. सर हमने सब कवर कर लिए, आपको पता नहीं चला. अच्छा, एक्चुअली ओके. फाइट इतनी ज्यादा हो गई है कि जो हमने सब आगे पीछे करके कवर कर लिए. बट गुड. it's a very good conversation and I thoroughly enjoyed it. अच्छा, अब जो है हम मूव करते हैं क्वेश्चंस. although questions are coming continuously, but I would now go towards the rapid fire round. अब वो जल्दी से खत्म हो जाएगा. 10 क्वेश्चंस मैंने हर बंदे के लिए रखे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम HR से मिस तैयबा से मैं 10 क्वेश्चंस करूंगी. क्विकली मुझे वन वर्ड आंसर चाहिए आपका, ठीक है, One और word. क्विकली. इसी तरीके से मिस है ना, आई मीन लाइक अब जो मैंने पूछा है उसमें आपको आइदर दिस और दैट, सो वेरी क्विकली यू वुड हैव टू कम अप विथ योर आंसर, ठीक है. जैसे कॉफी विद करण है वैसे ही समझ लें, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, ठीक है. अच्छा, सो स्टार्टिंग विथ मिस तैयबा. HR कॉस्ट सेंटर और वैल्यू ड्राइवर? Value driver. लो जी, सोच रही हैं आप. Value driver. यू हैव टू बी क्विक. एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी? ओके, एंगेजमेंट और प्रोडक्टिविटी, व्हाट मैटर्स मोर? Engagement. Productivity comes from engagement. हायर फास्ट और हायर राइट? Sorry, higher हायर फास्ट और हायर राइट? path. हायर राइट? I didn't get this one.
Fast. Hire fast or hire right? Quickly or the right person? The right person. Talent shortage or poor planning? Poor planning. Culture or compensation? What drives retention? Culture. It's culture. Data-driven HR, reality or buzzword? It's a buzzword. Data. It's a buzzword. Actually, there's a glitch. I can't hear you properly. समरीन, अगर आप अपना कैमरा there is बंद a कर दें तो glitch. आई थिंक बेहतर आपकी बैंडविड्थ में इशू है. Internet is very slow बिल्कुल today. ठीक है. Now we are going to be on the same question again. Culture or compensation? What drives retention? Culture. It's culture. Am I audible? No, you Oh, are I'm not. not You are not. Now you are. I got lucky in rapid fire. I'm back. I'm back. I You had the easy started, one, you know, Taiba. from the first question with you, Ms. Tayyaba. And this time around, I'm not going to open my camera, so it's going to be very fluent, inshallah ta'ala, and smooth. So starting from the first question again, so you do not find any problems. HR, a cost center or value driver? Value driver. Engagement or productivity? What matters more? Engagement matters more. Hire fast or hire right? Hire right. Talent shortage or poor planning? Poor planning. Culture or compensation? Which drives retention? Culture. Culture. Data-driven HR, a reality or a buzzword? Not reality so far. Okay, but It's it a should be. buzzword. It should Yeah. be. Performance ratings, necessary or outdated? I think it's necessary. All right. People first or business first? Sorry, I couldn't hear you. People first or business first? It's people first. Yeah, obviously you're an HR. Upskilling or hiring new talent? I think both, but I would go for hiring new talent. All right. Exit interviews, useful or formality? Very useful. Very useful. Wonderful. Now the table turns towards Ms. Hina. HR analytics, impactful or underutilized? Underutilized. Retentions in HRs is retention HR's responsibility? Agree, disagree? Yes, agree, somehow. All right. Leadership development, long-term gain or delayed ROI? Leadership development, is that what you said? Yeah. Is it a long-term gain or a delayed ROI? It's a delayed ROI. Leadership never Employee wants to develop. experience. Employee Yes. experience, measurable or abstract? I think somehow it's measurable. All It right. is. High performers or team consistency? High performance. Right. Hybrid work, productive or overrated? What work? Hybrid? Hybrid work, is it productive or overrated? Yes, it is. It is productive. Wonderful. HR should own productivity, yes or no? HR should? Own productivity, yes or no? Yes. Engagement surveys, actionable or cosmetic? It's not actionable. It's just it's filling the blanks, you know. Yeah. Culture fit or skill fit? What? I can't hear Culture you. fit or skill fit? Should it be a culture fit or Both skill are fit? equally important. All Cultural right. fit is One equally important. Good. One metric HR must own.
Name one. HR hold a lot of metrics. So Which I one would think you culture. name? I think culture fit is very important. Okay, all right. Now we move towards finance. I'd like to have first 10 questions from Murtaza Shirazi Sahab. And the first question is, HR is spend, investment or expense? एक्चुअली डिपेंड्स आप अगर उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं, ट्रेनिंग कर रही हैं, तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट ऑपरेशनली तो वो एक्सपेंस ही होता है. Sir ji, one word answer. What do you think generically, altogether in a bigger picture? What do you think? HR expense, is it an investment or expense? इट इज एन एक्सपेंस. Expense. See, this is finance. Cost control or growth? Priority? बैलेंस. कॉस्ट All कंट्रोल right. के बगैर आप ग्रोथ कर नहीं सकते. Wonderful, wonderful answer. Short-term profit or long-term capability? लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी. Wonderful. ROI on people, realistic or difficult? It's difficult. You have to be very watchful, very consistent. Difficult. Great. Headcount increase, opportunity or risk? Sorry, beg your pardon. Headcount increase, opportunity or risk? Depends. Normally risk, but depends on a business case. If you have a viable business case, obviously without headcount, you cannot increase your business. All right. Budget discipline or flexibility? Flexibility. All right. Training spend, essential or optional? Essential. Attrition cost, visible or underestimated? Sorry. Attrition cost, visible or underestimated? Operation cost. Attrition. Sorry. People are leaving your institution. The attrition rate, if it is high, Okay. is it visible or Uh, underestimated by HR? What do you think? I think ये HR की डोमेन का क्वेश्चन है. मैं करूंगा तो HR माइंड कर सर देगी. आपको जब भी तो रिस्पॉन्स करना है इसके ऊपर, ताकि HR को पता चले आप क्या सोचते हैं. नहीं, बेसिकली अकेले HR कल्चर या एनवायरनमेंट स्टैब्लिश नहीं कर रहा होता ना. जो अपर मैनेजमेंट है और एनवायरनमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अकेला HR नहीं कर पाता. अच्छा चलें, ठीक है, आप लड़ाई के मूड में नहीं है. एंगेजमेंट नहीं, बिल्कुल स्कोर्स, नहीं. रेलेवेंट और सॉफ्ट डेटा? एंगेजमेंट स्कोर्स, एंगेजमेंट रेलेवेंट और सॉफ्ट डेटा? कंप्लीटली रेलेवेंट. Relevant. Finance understands HR. Yes or no? यस, आई अंडरस्टैंड वेल. बल्कि मैंने तो आपको रिक्वेस्ट की थी, मेरे HR को भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं. वो समहाउ आपकी महल में उनसे एंगेजमेंट नहीं हो पाई. सर वो कांटेक्ट तो हुआ था, लेकिन आपकी HR बहुत बिजी थी, तो हाँ, वो आज कॉन्टैक्ट नहीं हो हमारे सके. कुछ इंटरव्यूज चल जी रहे हैं, जी, वो अभी भी. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. सो बट ही प्रॉमिस्ड फॉर इंशाल्लाह ताला द नेक्स्ट इवेंट. एनीवेज, नाउ द टेबल टर्न्स टुवर्ड्स फैसल साहब, एंड नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज cost cutting versus capability building. What wins? Balance. You A have to have a balance. balance. All right. Human Depends on capital the ROI, practical or theoretical? human capital or ROI. Yeah. Is it practical or theoretical? Abhi to it's theoretical. HR has to Great. work Data. to convert Yeah, it yeah, into yeah. practical. Yes. True that. Data accuracy in HR reports, trusted or questionable? Currently questionable. Questionable. HR has to Salary work a lot. I somehow I thought I knew the answer. Salary increases, cost pressure or investment? Depends on the business case as well. Okay, if iterations are increasing If you, and you want to if I would retain, ask you to give one answer, salary increases because of cost pressure or investment, what would you say? investment. All right. Productivity measurements, clear or complex? Depends on the businesses. Somehow it's complex. It's not easy to gauge. Hiring freeze, smart move or risky? Risky. Finance should influence HR decisions. Do you agree? No, you have to be business partners.
We have to have a same Okay. goal, same alignments. ओके चलें 2 घंटे बाद ये तो हुआ. अच्छा, एनीवेज, फाइनेंस शुड इन्फ्लुएंस पीपल डिसीजंस शुड फॉलो नंबर्स, यस और नो? Yes, yes. People's ऑलराइट, decision, breaks and makes the company. ग्रेट. एचआर मेट्रिक यू ट्रस्ट मोस्ट? Exit interviews. ये क्या बात कह दी? ऑलराइट. I thought it's something like a formality, more of a formality for most of the institution. We do not actually do anything out of that. It's just you put it in the file and the banda exited. That's it. Anyways, मैं तो कुछ institutions में होता भी होगा. Anyways, the last question for you is one thing HR gets wrong most often. Um, exact business needs, yeah, job description, every organization have different needs. Finance की needs, business जो होता है एक प्राइवेट है या गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज हैं उनकी और प्राइवेट की थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है तो Which means technical knowledge, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल gap आ रहा होता है. Yeah. यस गैप So आ if रहा you होता है keep और एक्सपीरियंसेस को Yeah, if you keep HR, like Murtaza Saab mentioned, in different business meetings, then obviously they will be यस on board देन ये and they'll बिल्कुल understand दिस गैप technicalities नीड्स more टू बी यस ये filled. Yeah, so that they can hire a proper can person with proper JD that is more relevant to the business. Wonderful. Thank you so very much. ये एक अच्छा सा क्यूट सा स्मॉल सा हमारा रैपिड फायर राउंड था एंड आई एम हैप्पी आफ्टर दिस. एक दो क्वेश्चंस और हैं वो ले लेते हैं एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स फाइनल वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ यू. Moving on to another question that I just saw in the comment section. Identify the potential candidate need to tell him that company is going to retain him and make him future leadership for maximum 2 to 3 years. As employees do not have time to wait for 2 to 3 years, what if someone is getting twice pay from other organization? So if the resource is very critical and retention is very important, Mm-hmm. depends on the position the person is holding. So counter Mm-hmm. offers can be made, but it has to be realistic. You have to ensure internal parity as well. It depends on the case, the position, the level, where the incumbent is placed. अच्छा इस पे मैं तैयबा आपसे Wonderful. एक चीज पे काउंटर करूंगा जो सक्सेशन प्लानिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है सो एम्प्लॉइज के नॉट एक्सप्लॉइट नॉट द एचआर नॉट Hmm. योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लेगेसी बिल्ड होती जा रही है ना तो साथ साथ सक्सेस प्लानिंग का भी जो है ना साथ साथ इट्स हैज़ टू बी डन नॉट ओनली एट लीडरशिप लेवल या मैनेजरियल लेवल पे एट एवरी level of the organization scope has to be built in and HR can play a very good role in it. True. So अच्छा basically, इसमें criticality मैं of भी the role comes from succession management. The criticality of the role or the position the individual is holding primarily comes from the succession management. कि whether the person whosoever is holding the position, क्या business continuity के लिए इतना important है that you have to make a counter offer. If yes, you will try your best to retain. If no, then obviously you have to look for other options. Nobody is indispensable. तैयबा इस पे मैं भी आपको फीडबैक थोड़ा सा देना चाहता था. आई आई हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. एक तो आपने देखना होता है कि उसको जो ऑफर है वो कितनी जेन्युइन है और उसकी वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है. लेकिन सम टाइम उसकी वैल्यू होती है और मैनेजमेंट ने प्लान भी किया होता है उसकी रेस का, प्रमोशन का, लेकिन ऑब्वियसली वो चीजें प्लानिंग में होती हैं लाइक आफ्टर सम टाइम वो प्लान की होती है एग्जीक्यूशन के लिए. अब मेरी टीम का एक रिसोर्स छोड़ के जा रहा था और हायर पैकेज पे जा रहा था. तो और वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा था जो कि ज्यादा स्टेबल भी नहीं थी. तो उसको बिठाया, उसको समझाया एंड वी हैड अ प्लान कि उसकी
प्रमोशन हमने प्लान की थी, जिसमें जो सैलरी के लिए जिस सैलरी के लिए वो जा रहे थे, लाइक आफ्टर 6 मंथ हम उसी सैलरी ब्रैकेट में उसको लेके जा रहे थे। लेकिन समहाउ उसको सारा कुछ बताने के बावजूद भी वो नहीं रुका और वो चला गया। तो इट डिपेंड्स कि वो आप एम्प्लॉई को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन इसमें मैंने ये एक्सपीरियंस ज्यादा किया है कि लोग जब किसी एक का इस तरह का ऑफर आती है तो लोग फिर एक फैब्रिकेटेड ऑफर भी क्रिएट करके खड़े हो जाते हैं कि मुझे भी सैलरी रेज दे दें। Yes, तो वो true, एचआर ने बड़ा ड्यू डिलिजेंस करनी होती है उसमें। true, true. वंडरफुल सर, ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा ये हमारा सेशन रहा है। आई होप इट वोंट अफेक्ट माय वीडियो क्वालिटी। अगर मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको बंद कर लूंगी, बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवेंट एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड इट वाज रियली हेल्दी। आई मीन नॉर्मली हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं तो उसका बड़ा एक सेट पैटर्न होता है, प्रेजेंटेशन लगाई, उसने बोला, हमने बोला, एंड में हमने क्वेश्चन आंसर्स ले लिए। But I actually thoroughly enjoyed this session because we've been communicating and interacting more. And I believe that at the end of the session, जो हमारे participants थे वो भी थोड़ा सा consensus में आ गए होंगे और acceptability create हो गई होगी between HR and finance. थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों की तरफ से कोई लास्ट मैसेज जो आप समझते हो कि इस इंटीग्रेशन के ऊपर? जी मुर्तजा साहब। समरीन, इट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर। अभी तक तो मैंने आईसीएमए में इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस होते नहीं देखे। इट इज अ वेरी क्रिएटिव एंड न्यू आइडिया जो कि बड़ा अच्छा था। लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकती है। मैं लाइक इंटरव्यूज बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहा हूँ, तो हमारे पास कोई 20-25 की डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। आई एम करेंटली वर्किंग इन आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके जी सर। डिफरेंट एंटिटीज है, जिसमें हायरिंग चल रही होती है, टर्नओवर चल रहा होता है। तो जब इंटरव्यूज में आईसीएमए के बच्चे आते हैं, समहाउ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू एसीसी एंड सीए। तो अब ये रियल इंडस्ट्री की डिस्कशन हो रही थी और आप के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आगे आके इंडस्ट्री में यही काम करना है कि आरओआई कैसे बेहतर कर सकते हैं, रेवेन्यू कैसे बेहतर कर सकते हैं, कॉस्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और सोशली भी। अच्छा, ये चीज सोशली मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी में जाके देखी। फास्ट यूनिवर्सिटी का एक इवेंट मैंने अटेंड किया, तो वो लोग प्रॉपर उनके जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए सेशन रखते हैं, ट्रेनिंग सेशन रखते हैं कि उन्होंने इंडस्ट्री में जाके लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है। तो मेरी सजेशन है कि इस तरह के अगर आप सेशन फ्यूचर में प्लान करती हैं तो उसमें स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करें, अपने मतलब सारे जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग करें और वो बैठ के सुने कि इन एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जा रहा होता है और कैसे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हैं। वेल Thank you. नोटेड सर, वेरी वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जी फैसल साहब, आप ऐड करना चाहेंगे? Well, last words will be, people drive performance and performance drive values for the organization. So HR and finance should be aligned to create those sustainable values. मेरा ये sustainable होना चाहिए value creation, और HR can be a very good business partner in creating values. Very true, sir. Thank you so much. Yes, ma'am, Ms. Tayyaba, your take from the session? I would also like to add whatever फैसल साहब ने कह दिया जो मैंने कहना था, but I want to just add कि the department should not work in silos. I think this is the solution. People should come together, talk, and then this is something which can sort out the things. What do you think? First of all, Shamreen, thank you very much for inviting us. And it was surely a very interactive session. And we get to know the finance more well. So, Positively, I would say. I understand yeah. what you're saying. Yeah, so it's like nothing I would like to add. I think we have discussed all the point, and I think finance must have cleared their grievances against the HR that they think. So they now get to know about the HR side as well. So we are somehow been able to make them understand that we are not the enemies. We are the support department, and we should work in cohesion. We should work together. At the end of the day, both finance and HR are working towards the business side. We do show that we are on the people's side, but actually we are working on the organization side, and we do support finance where it is required.
But we want the support in return as well, because when we both will be on the same page, then there would be less conflict and more organization beneficial side of the work will be more highlighted. Very true, very true. The basic idea behind this session was only that we'd like to create an integration and collaboration between these two very important areas, hiring people and then engaging them in business and creating profitability. Now with us, we have our Executive Director, Mr. Amir Ejaz. Thank you so very much, sir, from your very important time today. आज हमारे एक World Bank का भी कोई event था, and sir was part of it, and I believe that he's taking time out. Thank you so very much, sir. And over to you. आमिर एजाज साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दा साहब, थैंक यू वेरी मच। फैसल भाई बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तैयबा, Most welcome, Amir sir. Thank you for inviting. to have you on this forum and thank you very much Ami for organizing this. बेसिकली मतलब जो इम्पोर्टेंट थिंग थी, जब ये इन्होंने आइडिया डिस्कस भी किया समरीन ने कि शी इज गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, तो फाइनेंस हमेशा से स्पोर्टिव ऑब्वियसली रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो उनके अंदर ही रह पाएगा। उस चीज को फाइनेंस के अलावा बाकी जितने स्पोर्टिंग रोल में लोग काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली दे कम ऑन बोर्ड, और फॉर द म्यूचुअल विन विन पोजीशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑल डू फॉर वन और अदर वे, सब चीजें कॉमन कॉज के लिए काम कर रही होती हैं। बहुत सारी जगहों पे मतलब सिर्फ एक फ्रिक्शन का जो बाइस बनता है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारी जगहों पे होती है। और सेकंड थिंग होती है चेंज मैनेजमेंट को एक्सेप्ट ना करना, कि ये अब आप क्यों कह रहे हैं, पहले तो ये ऐसे ही होता था। तो हमें मतलब बीइंग अ सीनियर मैनेजमेंट ये चीज समझनी चाहिए और अपनी टीम को भी इसमें लूप इन करते हुए साथ में लेके चलना चाहिए कि थिंग्स आर इवॉल्विंग, और जितना वो पहले मतलब जो उनकी पेस थी अब उससे बहुत ज्यादा तेजी से वो इवॉल्व हो रही है। कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर टैलेंट को लेकर आना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन टैलेंट के साथ साथ जो बैठे हुए हैं उनको ऑप्टिमाइज करके उसमें से बेस्ट रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ना, सो दैट कि वन साइज फिट फॉर ऑल वाली बात ना हो रही है, सबको एक ग्रॉस सैलरी बोनस मिल गया सब खुश हो जाओ। दिस शुड नॉट बी द फोर्टे ऑफ अ गुड एचआर व्हेन इट कम्स टू मतलब फाइनेंस। वो कहता है ठीक है यार, मेरी तरफ से मैंने अगर एक बॉल पार्क कर दी है फिगर वन क्रॉस की, तो उसका ये मकसद हरगिज नहीं है, बजट को उस तरह से मत देखो। अब कम विद सर्टन आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज कि मैं अपने हाई परफॉर्मर को 200 तक भी लेकर जा सकूं, 2 क्रॉस भी दे सकूं, और इसके ऊपर ऑब्वियसली फाइनेंस की कोई टेक नहीं है। उन्होंने तो बजट दे दिया है, अब तो लाइन मैनेजर से लेकर तमाम जो भी उनके रेलिवेंट जो लोग होंगे, डिपार्टमेंटल हेड समझ लें, उनके साथ मिल के एचआर ने उस सारे को कोहेसिवली बना के आगे बढ़ना है। बजट का कोई ऑब्वियसली इस दरमियान कोई इशू नहीं आता है। बाकी भी प्रोसेस के हवाले से अगर बात करें, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में पुराना जमाना था जिस वक्त हम शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन से बहुत पीछे थे, काम करवाने के लिए बंदे चाहिए होते थे। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो ऑटोमेशन है चीजों के ऊपर। अब तो एचआर को और थोड़ा सा लाइक फ्रैक्शनल सीएफओ का अगर रोल है तो फ्रैक्शनल। अब आप अगर एक डिजाइनर की बात कर रहे हैं, मेरे पास काम पड़ गया है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाना है, तो अब आपको क्या जरूरत है कि आप हाई पेड किस्म का बंदा अपने पास फुल टाइम रखें, जबकि आप पूरे महीने में 4 एक्टिविटीज करने का इरादा रखते हैं, उसकी बूस्टिंग करवाएंगे व्हाटसोएवर यू शुड। और ये चीज जो है ये बेसिकली एचआर की तरफ से पॉजिटिवली आनी चाहिए कि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और फिर इसमें चेंज मैनेजमेंट और एक्सेप्टेबिलिटी है कि उस रेलिवेंट एचओडी को अब इसके ऊपर स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए, नहीं मैंने तो प्लान ही ऐसे किया हुआ था, 4 काम मैं उससे ये करवाऊंगा, बाकी काम मैं और करवाऊंगा, उससे फिर मैं मे बी कोई रेफरल मार्केटिंग नहीं करवा। तो आप थोड़ा सा, अगर आपका मतलब आप समझते हैं कि आप इस तरह से भी किसी को लेकर आ सकते हैं मुख्तलिफ पर्पज के लिए, कम से कम फिर आइडिया बनाइए, कोई बताइए कि ये टोटल उसके साथ 8 घंटे चलना था, हमने उस 8 घंटे में से उसने किस किस असाइनमेंट पे कितना काम किया, तो मेरी भी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूरी हो ना। जो हमेशा से बहुत बड़ा वो स्लोगन है कि फाइनेंस वाले उस पर बात करते हैं, ऑपरेशन हो, सप्लाई चेन हो, कोई भी जगह हो, एंड सेम इज द केस विद एचआर, कि आप लोगों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है भाई, आपके पास जो इतना कुछ करके दे रहे हैं, हाउ डिड यू सेव माई मनी, बिजनेस के हवाले से आपने इसमें क्या किया, तो वो चीज बतानी पड़ेगी।
ऑर्थोडॉक्स स्टाइल में चलते हुए हम समटाइम बोल रहे होते हैं कि मतलब अब जिस तरह इसी की डिजाइनर की बात करते हैं, नहीं सर हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि हम ग्रेजुएट से नीचे, इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं सिस्टम पे बिठाने के लिए एक बंदा ऐसा ले आऊं जो ग्रेजुएट ही नहीं है। तो लेकिन हमें समझना चाहिए ना इस चीज को कि सर्टिफिकेशंस का टाइम आ चुका, तो हम अब उस तरफ जाएंगे। मतलब वो तो अगर मैं बात करूं कि उसको वहां से कहीं से बड़ी मुश्किल से कोई चीज मिली हुई है और उसने कहीं से ग्रेजुएट कर लिया हुआ है माशाल्लाह, तो वो तो मेरे मतलब बजट में नहीं आने वाला, वो रिसोर्स तो बहुत हैवी वेट हो जाएगा मेरे लिए। तो मुझे अपने वही चार एक फ्लायर अगर बनवाने हैं तो फिर मुझे उस पर कॉम्प्रोमाइज करके अदर ऑप्शंस को देखना है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बाकी हम सब लोग बहुत सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है अपने अपने काम के अल्हम्दुलिल्लाह। तो वंस अगेन जस्ट कंसिडर दीज माय टू पेनीज। और बाकी आप लोगों का सेशन में अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड बैंक वाले की वजह से मैं अभी सुन नहीं सका, लेकिन नॉर्मली ये वाले सेशन जो है ऑन माय वे बैक टू होम, कराची की ट्रैफिक के अंदर घंटे का तो बिल्कुल पता नहीं लगता गाड़ी पे बैठे हुए। तो इंशाल्लाह जैसे मैं वहां पे सुनता हूँ वहां पे भी इसको सुनूंगा। थैंक यू वेरी मच नवीन, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट। Thank Thank you, you, sir. everyone. Now it's time for us to have a picture, and I would request everyone to please turn on your cameras so that we can, like create a memory. और फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं. So kindly turn on your cameras.